Guru Nanak Girls Degree College. I, on behalf of Sri Guru Nanak Girls Degree College, feel privileged to welcome Professor Anil Mishra, Senior Professor from Department of Chemistry, University of Lucknow, our esteemed speaker for today's webinar on the pathway of happiness, a practical approach. Sir is teaching in University of Lucknow since 1991 and has over 40 publications in various national and international journals. He has also served the University of Lucknow in various administrative capacities such as director, University Data Resource Center, and presently he is also the coordinator of the Unit of Achievements, but I could pick only few due to time. Privilege to have an opportunity to listen to you, sir. This webinar is being organized in collaboration with the Counseling and Placement Cell of University of Lucknow. We extend our sincere gratitude to Professor Madhurima Lal, Director CPC, University of Lucknow, for providing us this opportunity to host this coveted webinar. I take this opportunity to welcome Professor Madhurima Lal. Ever since ma'am has taken over the charge of the Office of the Director of CPC, she has been working relentlessly for the successful training and placement of the students of not only of Lucknow University, but of all the students who are studying in the various affiliated colleges. We cannot thank you enough, ma'am, for your support and cooperation. Have you been joined by Professor A.K. Sengupta, ma'am? No, ma'am, not yet. He said that he would join, but sir is not available right now. We'll be joining in by Professor Sengupta shortly, and sir has been also a constant source of support for us. And in due course of time, I welcome our dynamic principal, Madam Dr. Surbhi G. Garg, my fellow colleagues, dear student, and juncture, I would like to tell you all that we have received over 1,500 registrations, of which about 500 registrations are from outside our institution. And these numbers itself are actually at this juncture, I would like to tell you all that we have received over 1,500 registrations, of which about, and these number itself are the testimony of the success of our webinar. Sri Guru Nanak Girls Degree College is committed to all-round development of its students, and as such, with the support of our principal madam and manager sir, the seminar committee and the placement committee of the college has been working tirelessly for the holistic development of the students. Not do we only want to make them financially independent, but we want to grow them as happy and content individuals radiating positivity, thus being in a position where they are always glad to help each other grow. And therefore, with this mission of ours, today's webinar makes even more sense. I would now request our principal madam, Dr. Surbhi G. Garg, to deliver the welcome address. A very good morning to all of you. I, Dr. Surbhi G. Garg, Principal, Sri Guru Nanak Girls Degree College, welcome you all to the national webinar organized by our college under the aegis of Counseling and Placement Cell, University of Lucknow. Since our inception in year 2000 and with a student strength of 2,400, our college has already made its mark in the field of higher education for girls by offering degrees in BA, BCom Honors, BBA, MCom Pure, MCom Applied Economics, MA Education, and MA Home Science. And we are consistently dedicated towards all-round development of our students. Today, I first and foremost welcome our speaker sir, Professor Anil Mishra sir from Department of Chemistry, University of Lucknow, who will be sharing his valuable thoughts upon the pathway of happiness, a practical approach. I believe the lecture will prove to be a milestone serving internal peace to listeners during this period of lockdown, which brought a lot of uncertainty and risk to our lives. Also,
Today, I feel proud to welcome around 1,500 dignitaries from all over the nation, from various industries, banks, teachers, managers, from various colleges and universities, and students from various institutions. It is indeed a matter of pride and privilege to welcome our very modest and dynamic Dean, College Development Council, Professor Madhurima Lal Ma'am, without whose support this wonderful session would have been impossible to organize. At the same time, I want to thank our source of inspiration, Vice Chancellor Sir Professor Alok Rai, under whose able leadership, pragmatism, prudency, and diligent approach, we all together are ready to flourish and develop. His philanthropy and genuineness have energized and vibrated not only University of Lucknow, but also by holding hands with affiliate colleges, have boldened our identity as member of Lucknow University family. Also, I would like to welcome our dynamic and progressive manager, Sir Sardar Indermohan Singh Ji, who will be joining in a short while from now, who had always been our force to move ahead and whose unconditional support has always given a new meaning and dimension to the development of the college and made it reach new heights. Again, I welcome all my online coveted guests, participants, dear students, and my hardworking teachers and staff who made all initiatives of college successful, and that too in most magnificent way. I feel blessed to have such a beautiful Sri Guru Nanak family, and on behalf of my Guru Nanak Parivar, I extend my welcome you all from the deepest deep of my heart. I look forward to peaceful and progressive thoughts as takeaway from today's session. Let us fight back COVID 19 with all our valor and positivity and let India emerge as a winner. Thank you, Jai Hind, and have a great day. Thank you so much. Over to Priyanka, ma'am. Thank you so much, ma'am. I must thank you on behalf of the placement cell and the seminar committee and all the faculty members of this college, because you have always been very supporting and kind enough. Whenever we have proposed anything, any program for the benefit of the students, you have uh, given us your full support. Thank you so much, ma'am. And now I would request Professor Madhurima Lal ma'am to enlighten the participants with her words of wisdom. Thank you, ma'am. First of all, my gratitude to Honorable Manager of Shri Guru Nanak Girls College and for having this wonderful segment and given permission to his staff to have this national webinar being conducted in your college. This is an excellent effort of, I must say, of Madam Surabhi ji. The time I told her, after that she has taken it on a very good platform in a short span of time. I have never seen somebody doing it in such a taking such a vigorous stand and doing it in such a lovely manner and coordinating everything. I think 2 days back, 2 or 3 days back, since then, Surabhi ma'am must have given me at least 150 calls for different issues, and that shows how the work should be done. So she is enough inspiration for her college. I was quite wondering what will happen after Kamla ma'am is not there, because I'm very emotionally attached to her. I was attached to her, and in most of the programs, I was always there in your institution. So it is a long emotional contract with her, and still it is there. So I was wondering that who will be taking after that, and I could see that all her legacy is very well followed by. In the end, it's very secured in the hands of Surabhi ma'am. So I'm so happy. I can only bless you all because you all are so young to me. And I think most of my students are there in the institution taking charge of various activities. And so I'm very confident that this college, no, it is an unmatched college, because very people who really wanted to do something and very positively are doing. All my blessings, you're always my top priority, and that is there. I am not able to do anything without the my strong cooperation of my team. And in my team, of course, Dr. Sunita Shrivastava, she has been working throughout day and night. And right now, AK Singh ji is having some problem because of her
strenuous support that she has been giving, Dr. A.K. Singh. They are always with me, and special thanks to them. Now, coming to today's deliberation, I'm very extremely grateful to Professor Anil Mishra for accepting my small, humble request to give his deliberation. Once I heard him, and I was really very sincerely concerned when I listened to this deliberation, that at the time when most of the economies and most of the people are hit by this Mahamari, I think that more than 212 countries are affected by this, and even the giants, economic giants, they are they are simply surrendered before this Mahamari known as COVID-19, and they are not able to sustain their economy, except for India, who is very nicely and very positively fighting for it. So, what we can do during this lockdown, that we can have a lot of, we can keep the students engaged, we can tell them online lectures, we can do a lot of work regarding syllabus. But what actually is required, what our students should learn is that even whatever the state is, happiness or non-happiness, unhappiness, they should learn, they have grown up, they should learn to be happy in any situation, because happiness is the most positive feeling in a human being. And I feel it is a mental state, whether to be happy or not to be happy. So this is the right time to teach them that whatever the strain is, whatever the condition, if you can train yourself, you can make yourself happy. And if you can make yourself happy, consequently, automatically you will be able to make people around you happy, your family happy, and naturally the society and the nation will be happy. So right now, besides that, we must learn our syllabus and all those things, but right now with this condition, this unprecedented condition, the topmost requirement is that we must, this is our duty, that means we must train our students that how they should deal. And dealing, what does dealing mean? They're not going outside, they have learned, but how to be happy in whatever situation they are. And that is why I have kept this series, and I've requested Professor Mishra to help us out, to help our student out. This is the basic requirement of the day. And he has very kindly consented. It's not that keeping only to my student, it must go to our large family, that is the family of Associated College. And then therefore we are having a series of it. If we can teach our student, that is the primary duty right now that we must go on. Professor Mishra has been, Majumdar ma'am has already said about him. Professor Mishra, one thing is that everything, and you can see that right now the powerful thing is technology. After lockdown, I think the health sector will be coming out with a glaring color, but I think the technology, we must have the perfect knowledge of website. And let me tell you that he is the only sole man, one man show, that the website of Lucknow University is being taken care of by a single hand of Professor Anil Mishra ji. And there are crores, we have crossed crores of figure. I'm not taken down the crore. I think it is 7 crore, more than that. And it can only be possible, and if you do things qualitatively and quantitatively, there is a very huge standard how it is to be presented. आप लोग खाना बनाते हैं, लेकिन अगर खाने को भी अगर आप हौच पौच करके देखिए तो चाहे कितना स्वादिष्ट बना हो, उसमें स्वाद नहीं आता. लेकिन अगर थोड़ा कम भी स्वादिष्ट हो, अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो वो तो होना चाहिए, क्वालिटेटिवली तो होना ही चाहिए, मगर प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना. तो क्वालिटी प्लस प्रेजेंटेशन, ये तभी हो सकता है when the person is expert. And I feel, मुझे लगता है कि अनिल मिश्रा जी के इस कारण से ही इस वेबसाइट ने इतने कम समय में इतना पॉपुलैरिटी गेन की है. आई थिंक इन द वर्ल्ड इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग. एंड अभी जो हम लोग का रिकॉर्ड बना है, वी हैव मेड अ रिकॉर्ड इन पर्यावरण, दैट इज आप लोग के सबके सहयोग से ट्री प्लांटेशन में, उसमें भी उन्होंने रिकॉर्ड बनवाने में उनका बड़ा सक्रिय सहयोग रहा है, योगदान रहा है, स्पेशली टीम से लेके उनको करवाने में. एंड अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ल्यूचम जो सैनिटाइजर बनाया है, वो भी सर के ही सहयोग से उसका निर्माण हुआ है, जो बहुत पॉपुलर भी हुआ है. इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम होते रहते हैं. आप लोग हमारे उसमें रिक्वेस्ट भी करा था, आप लोग उसको सुनिए, देखिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखिए. और
काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल की मजुमदार मैम से आगे भी आपका सहयोग मिलता रहे। आपके सभी बच्चों को प्लेसमेंट्स वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह हम लोग साथ मिलके कर रहे हैं, करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो वाकई जेन्युइन जॉब सीकर हो। जेन्युइन जॉब सीकर क्लेम बहुत करते हैं, जेन्युइनली कोई जॉब सीकर नहीं होता। उसको नौकरी हम अभी से प्रॉमिस कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर मोर एंड जो जॉब सीकर है जेन्युइन वो कम है। सो नौकरी अगर किसी को जेन्युइनली चाहिए, internship genuinely chahiye, we are there, we are always supporting, and this is under the capacity building program, this is under the community services program that we are doing it. We are very grateful on behalf of my team. We are very grateful that Anil Mishra ji is now today available, and he has given his precious time to give this deliberation on happiness. I thank you all, my lovely family, especially Surabhi ma'am, to be so cooperative and to be so nice to Thank you, have ma'am. Thank taken you so my much. words and doing it so All great. your blessings, ma'am. God bless you. Thank you so much, ma'am. Vikas. It's always a pleasure listening to you. और हम आगे भी आपका हमेशा सहयोग चाहते रहेंगे इसी तरह। कॉलेज के साथ आप बने ही रहे, और आपको मतलब बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं कॉलेज श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव मैम और AK सिंह सर को भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। एंड now with this we have come to an end of our inaugural session, and I would request Professor Anil Mishra sir to take over from here. And before he takes over, I want to inform all the participants that whatever questions you have, you can put those questions in the chat box, and those questions will be entertained at the end of the session. Professor Anil Mishra sir, over to you, sir. Thank you very much for this introduction. Let me first share screen. The pathway to happiness. Thank you very much, Madhurima ma'am, for having me for this lecture. Surabhi ma'am and other people, other office bearers of Sri Guru Nanak College. This college is a very good support for me. I am taking care of the admissions since the last 4 years, and so this Sri Guru Nanak College has always been a test center for the exam, and I have received full cooperation from them. So it's a pleasure to be part of their webinar. And I also welcome my brother Ashwini, and man, that makes an international reach out. He's in Chicago at 1 o'clock at night. He's also listening to this seminar. So that and another thing is, happy birthday, Ashwini. It's a pleasure to be talking to you like this. The pathway to happiness, a practical approach by a person from chemistry. Happiness, chemistry. These are two things which normally don't match. The people, those who are writing on the screen, please stop it. Don't write on the screen, please. Just erase it, whatever is written. Students, please don't write on the screen. Okay? So this part, the happiness part, what is this practical is what is important. We are talking about chemistry and happiness. Chemistry is a subject which intermingles with everything. चाहे आप जिसकी भी करें chemistry आ जाता है. But before I go ahead, this is one important thing in the next slide, which you, if you remember, कैसे इस चीज को अगर याद रखेंगे, तो बाकी बहुत सी चीजें आपकी automatically ही हो जाती हैं. कोई भी situation अगर इसमें आए, this is not just about the present situation, it is about any situation in your life. If it is coming, and if it is causing you some sort of a problem, some sort of an uneasiness, उसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. छोटी सी बात है. अगर एक और इसमें कहा होता है, if there is
If it's problem, there is bound to be a solution. Otherwise, it is not a problem. अगर आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, just do it. अगर नहीं कर सकते हैं, you'll have to go for some of the strategies that I'll be telling you later. अगर कोई चीज का सलूशन है, उस सलूशन को अप्लाई करिए. इस चीज का एक छोटा सा, मतलब बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देता चलूंगा और ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोग करेंगे आगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा. कि जैसे छोटी सी बात है, हम लोग कभी कभी लगता है किसी से हमारा मूड ऑफ लग रहा है, उलझन लग रही है, समझ में नहीं आता क्यों खराब वो लग रहा है. उसके लिए क्या करना है, सिर्फ थोड़ा मिनट बैठ के ये सोचिए कि किस चीज से आपको पानी लग रही है. अगर आपके चारों तरफ जो सिचुएशन चल रहे हैं उसको आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, भाई क्या किस वजह से, और जिस भी वजह से आपको मूड ऑफ ज्यादा या कुछ उलझन रही होगी, जब उसके बारे में आप सोचेंगे तब आपको उलझन बढ़ेगी. वहां आपने आइडेंटिफाई कर ली क्या प्रॉब्लम है. बिलीव में इतना सा करने के बाद आपका आधी समस्या खत्म हो जाएगी. देखिएगा माइंड थोड़ा सा लाइट हो जाता है. और उसके बाद अगर उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, जस्ट डू इट. और अगर नहीं कर सकते तो यू हैव टू फॉरगेट एंड एक्सेप्ट इट एज इट इज थिंग. और प्लीज द पीपल हु आर राइटिंग ऑन द स्क्रीन, प्लीज डू इट. I must tell the students कि अगर अभी हमको नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा. इसलिए मत करिए, इसको मत लिखिए स्क्रीन पे, हम बाद में मालूम कर सकते हैं. सो डोंट डू इट प्लीज स्टूडेंट्स, हमको मालूम चल जाएगा. हाँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं जो हमें पता ना चले. प्लीज डोंट डू इट. Let me remember. Okay. So far it is okay. We have removed the things. So please don't do. कोई और कर रहा है ये. I'm stopping this lecture. Let me like this. This is not the way. चलिए कोई बात नहीं. I'll accept it as it is. If you are unable to see the slides, it's okay. No problem. Now slideshow is going on. Yes sir, we can see. You can see now. Yes sir, we can see. But I'll have to. Yeah. So one thing we need to know is what is happiness. If you need a definition of happiness, there could be plenty of them. Some of them are here, emotional state, how you're feeling about it. But there are about 500 participants, and if I ask all of the 500, they'll have the definitions of their own. और वो definitions क्या हैं, ये आपको पता है. But there is no single definition of happiness. Maybe at a particular time, आपको किसी चीज से मिल रही है और आप खुश हो रहे हैं. और अगर उससे खुश नहीं, मतलब उस समय आप खुश हो गए, मे बी एक दिन बाद या 2 घंटे बाद ही से फिर आपको खुशी नहीं रह जाती. ऐसे में क्या है, what you need is it is just a dynamic thing, because happiness is nothing that you get an absolute thing and it is there. It is something which you have to achieve through and there are two types of things. One is a momentary happiness. अभी कुछ हुआ, खुश हो गए, थोड़ी देर बाद लगे यार क्या. और कौन सी चीजों में ऐसा होता है कि मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए सोना वाली सिचुएशन आती है. तो ऐसे में what you need to do is have try to attain some an inner peace which is a long lasting thing. And when if you really want to be happy, then no one can stop you. That is one of the things you have to keep in mind, because this is another thing that in the next slide what I'm discuss is, it is really simple to be happy but very difficult to be simple. And because why do we it's differ simple? Because we are not stopping to enjoy the small things that are happening. The small things that are happening, छोटी छोटी चीजें जिंदगी में होती हैं जो हम उस पर रुकते नहीं. We are waiting for something good to happen. तभी की सिचुएशन में देखिए, कोविड की सिचुएशन में we don't know what is going to be the future right now. But हमें इसी बीच में बहुत चीजें सीखने को भी मिली और बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो हमको खुश करती हैं. We have to take
those things interview, और उससे फिर हमको आगे बढ़, क्योंकि we are waiting for something big to happen, but we're not enjoying the present moment, because what we need to do is enjoy the present moment and not wait for something big to happen maybe 1 or 3 months from now. ठीक है, जो सिचुएशन है you cannot do much about it. जो भी सिचुएशन है try to make most out of it, because happiness is a journey rather than a destination. Journey destination क्यों? It is just like अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लखनऊ से दिल्ली, हालांकि ट्रेन इस समय नहीं चल रही है, इमेजिन करिए कि ट्रेन चल रही हो, तो लखनऊ से अगर दिल्ली जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू टेक 7 घंटा 9 घंटा, जो भी टाइम ले रहा है। हमारे पास बैग है, हम बैग अपने सर पे रख के खड़े हैं कि चलो भाई हम दिल्ली पहुंचेंगे, हम दिल्ली में हैं, हम पहुंचेंगे तो उतर जाएंगे। तो उस ट्रेन हम अगर अपने हाथ सर से हटा के अगर ट्रेन में नीचे दें तो ट्रेन पहुंचेगा उतनी ही देर में, बट उस बर्डन सर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं आगे बताऊंगा कि पहली चीज, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक अस अनहैप्पी, किससे हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। हमको ये पता चल जाएगा किस वजह से हम खुश नहीं है, उसको हम ओवरकम करके वी विल ट्राई टू बी हैप्पी। एंड गिव मी whatever the solutions which I'll be telling you in a little while, they are all solutions which I have applied practically for myself. खुद करके तभी इस चीज को देख के आगे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, या आपने किसी लेक्चर सुन लिया आज तुरंत स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो गया, भाई तुरंत आज के बाद से हमको सब चीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। What you need to understand कि ये सब चीजें comes with practice, with habit. और कैसे, I'll be telling you a little more about that when I take up the solutions. Instead, so happy start from worry. Worry से क्या होता है? Worry बढ़ के हो गया anxiety हुआ, anxiety से हुआ stress. जैसे मैं हर लेक्चर ही बोलता हूँ कि worry का accumulation is anxiety. ज्यादा हो गया तो वो anxiety पे जाता है, और anxiety level बढ़ गया तो वो stress पे जाता है। बेसिकली अभी समझ लीजिए worry थोड़ा बहुत आपका मेंटल स्ट्रेन है, मेंटल प्रेशर है, इज वरी। जब आपको उसको थोड़ा बहुत उसको आपको सिचुएशन में आपको आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आने है, दैट यू कैन से इज एंजाइटी। और जब आपको बॉडी पे उसका असर लगता है, दैट यू कैन से स्ट्रेस। इट इज समथिंग लाइक दैट कोई आपका हाथ दबा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हाथ मसाज कर रहा है, बहुत अच्छा लगा, वो आपका वरी है, थोड़ा बहुत जरूरी है। फिर आपने उसको थोड़ा सा दबाया, जिस समय आपने दबाया थोड़ा ज्यादा देर से पकड़ लिया तो हाथ में दर्द होने लगता है, दैट इज एंजाइटी। और बहुत ज्यादा देर चले तो हाथ टूट भी सकता है, दैट इज स्ट्रेस। दिस इज व्हाट फॉर अ केमिस्ट आई कैन एक्सप्लेन वरी टू एंजाइटी एंड एंजाइटी टू स्ट्रेस। हालांकि साइकोलॉजी के टीचर से या स्टूडेंट से पूछेंगे, दे हैव सर्टेन पैरामीटर्स व्हेन दे कैन मेजर कि कब ये वरी से एंजाइटी पे जाता है, एंजाइटी स्ट्रेस पे जाता है। But we are not concerned about these statistics right now. But हमें ये समझना कि accumulation of worry is anxiety and accumulation of anxiety becomes stress. अब इसमें क्या है कि जो आपका worry है, थोड़ी worry तो जरूरी होती है। थोड़ा worry basically you are feeling concerned about something, कुछ थोड़ा pressure होना जरूरी है। कोई भी कर रहा है, मैं अगर यहाँ लेक्चर भी दे रहा हूँ तो मेरा एक बैक ऑफ द माइंड में प्रेशर है कि हाँ नहीं, मुझे अच्छे से समझाने की कोशिश करना है, समझाना कोई गलती नहीं है, समझना आपको है, कैसे समझना, क्या करना। मेरा जो भी चीज है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं अपने तरह पूरे तरीके से अच्छे से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही चीज हम ज्यादा वो कर, अरे यार समझाना है, पता नहीं समझ में आएगा लोगों को, नहीं समझ आएगा, तो वो एंजाइटी से स्ट्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जो वरी से जो अच्छा हो सकता था वो बिगड़ता जाता है। So that is, there are plenty of teachers also in watching this webinar. और उसमें ये है कि सबको पता है कि जब हम क्लास को पढ़ाने जाते हैं तो एक हल्का सा प्रेशर है। स्टूडेंट्स हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए हल्का सा प्रेशर है। प्रेशर काहे का? अच्छा करने का, ट्राई टू डू बेटर, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड दैट थोड़ा बहुत वरी तो जरूरी है, बट उसको बढ़ने नहीं देना है। वरी का अगर डेफिनेशन क्या है, गूगल पर जाइए, डेफिनेशन ऑफ वरी टाइप करेंगे तो क्या आएगा? वरी रिफर्स टू थॉट्स एंड इमेजेस एंड इमोशंस ऑफ अ नेगेटिव नेचर in which vague mental attempts are made to avoid anticipated threats. एक डेफिनेशन मिला था मेरे बहुत सारे में, और ये ऐसा डेफिनेशन था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ये वैसे ही डेफिनेशन है जैसे आप लोगों ने अगर 3 इडियट्स मूवी देखा ही होगी सबने,
में आमिर खान ने बुक का डेफिनेशन दिया था। उस बुक के डेफिनेशन से ये हुआ कि उसमें बुक का क्या डेफिनेशन तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। उसके क्या है कि इसको अगर हम कायदे से समझना चाहें तो वरी इज जस्ट टू फील अनईजी और कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा, तो उस डेफिनेशन में ना जाके जस्ट एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू इज योर वरी, whether it is good or bad, that depends on what thinking about। और हम लोग को मेनली हम क्या के लिए सोचते हैं, वी आर व्हाट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना वाली सिचुएशन कि people are saying all sorts of things about, मेरे लिए पता नहीं क्या क्या चीजें बातचीत हो रही है। ये बहुत कॉमन चीज में हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या गाना मैंने अभी बताया, गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो छोड़ो बेकार की बातें, बाकी चीजें आपको गाने के बारे में पता ही है। दैट इज व्हाट क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट। अगर आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात हो रही है तो सबसे पहली चीज, यू शुड हैप्पी दैट यू हैव समथिंग इन यू जो आपके बारे में बात करते हैं। कोई भी आपके बारे में ऐसे फालतू में रास्ते चलते, किसी के बारे में आप खुद भी रास्ते में चल रहा है, कोई आदमी चला जा रहा है, आप उसके बारे में कोई चीज नहीं कहेंगे या कोई उसके बारे में बात नहीं कर। अगर आपके बारे में बातचीत हो रही है तो आप कुछ है बाकियों से अलग जो आपको हेल्प कर रहा है कि ओके बारे में कम से बात तो चल रही है। अच्छा करेंगे खराब करेंगे तो ये आप इसको किसी के बात चीज को खत्म नहीं कर सकते। पीपल आर गोइंग टू से, जैसे मैंने कहानी के बारे में एक है कि अगर एक बाप और एक फादर और सन एक घोड़े को लेकर चले जा रहे थे तो लोग कहने लगे भाई कैसे बेवकूफ है, पैदल चले जा रहे हैं। फादर को घोड़े पे बैठा दिया, कैसा फादर है यार, पैदल सन बेटा पैदल चल रहा है। घोड़े पे बैठ गया तो कहता है कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है। दोनों घोड़े पे बैठ गए तो कहते हैं कैसे बाप में, घोड़े की चिंता ही नहीं। तो हर सिचुएशन में कुछ कुछ तो बोलेंगे। अगर आप उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने लगे तो ये आप प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपके लिए कोई अच्छा कुछ बोल रहे हैं, पीपल आर सेइंग समथिंग गुड यू फील गुड, पीपल आर सेइंग समथिंग बैड अबाउट यू फील बैड। इसके मतलब अगर आप दूसरों के कमेंट के हिसाब से अगर आपने इमोशंस को कनेक्ट करने लगे तो यहाँ पर आपका सारी चीज कंट्रोल दूसरे लोग कर रहे हैं। किसी को पता है कि इसको परेशान करना, कुछ इसके बारे में बोल दो। किसी को पता है इसको ठीक रखना है तो हाँ चलो ठीक है, तो इसके लिए तारीफ कर दो। उस पे हमारा अगर इमोशन डिपेंड करने लगा तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। People would be saying something, but your reaction is your own reaction. आपको अपना रिएक्शन पे ध्यान देना है। बहुत चीजों में ऐसा होता है कि भाई लोग कैसा कह रहे हैं मैं कैसे करूं। अब इसके बारे में कैसे करना है ये मैं भी आपको बताता हूँ आगे। पहले समस्या समझ ले कि समस्या कैसे मतलब अनहैप्पीनेस का कारण है। क्योंकि कोई भी चीज को हम देखते हैं, दूसरी एक चीज है एम्बेरसमेंट कह लीजिए, ह्यूमिलिएशन कह लीजिए, कई इसमें टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं कि कोई भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ पास जिसके बारे में आप सोचते हैं और आपको खराब लगता है। जब जितनी बार आप उस खराब कोई भी चीज अगर खराब हुई है तो उसको आपको कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी उसके ना भूलने की कुछ चीज सिचुएशन खत्म नहीं हो रही है, बट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये जो कुछ भी मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ इसमें कोई चीज नहीं है नई। अभी आप भी देखेंगे कि कुछ लोग ये भी आता है कि अरे यार सर क्या नया चीज बता रहे, कुछ नया नहीं है। नया मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, है सब कुछ पुराना और सबको पता है। और बट प्रैक्टिकल अप्रोच में मेरा यही कोशिश रहती है कि इसको आपको अवेयर कर रहा हूँ कि इसको अपने लाइफ में कैसे अपने लिए कर सकते हैं, खुद के लिए से इन चीज को अप्लाई करके खुद को ठीक कैसे रख सकते हैं। तो जब कोई पुरानी चीज हो उसके बारे में जब आप सोचेंगे, जितनी बार सोचेंगे उतनी बार उसके ग्रेविटी बढ़ती चली जाती है, आप प्रिफाई करते चले जाते हैं उस चीज को, तो उसको आपको रोकने की कोशिश करें। तीसरी चीज जो हम लोग के बहुत ज्यादा परेशान है जिसके लिए एंग्शियसनेस, व्हाट इफ, व्हाट वुड हैपन इफ, जो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम लोग सोच रहे हैं। भाई ये कोविड की सिचुएशन इज अनसर्टेन, कोई ऐसी चीज नहीं कि भाई पता चला 15 दिन में ठीक हो जाएगी, इसके बारे में हमें पता नहीं कितने दिन में क्या ठीक होगी। तो व्हाट वी नीड टू डू इज हैव अ फोकस कि हमको आगे के बारे में कुछ नहीं पता,
आगे के बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट ये एक ऐसी सेक्शन जिसमें प्लानिंग हम कब तक की करें इज अ क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे वो करेंगे, ये चीज आपको सोचनी है कि कैसे, क्योंकि आगे के बारे में बहुत ज्यादा आप नहीं सोचते। यू कैन प्लान फॉर द फ्यूचर कि आप इसको कैसे प्लान करेंगे, कैसे क्या ठीक रहेगा, प्लान कर सकती है। जैसे अभी की सिचुएशन मान लीजिए कर रहे हैं, हमें पता है लॉकडाउन है, हम लोग लखनऊ में जो है या कहीं पर भी कोई रह रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज स्टे एट होम। साथ में प्लानिंग में हमारा घर में जो कुछ भी रूटीन चलती है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हमें खाने की चीजें मिलती रहे, और जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमारे पास खाने की चीजें, वी आर लर्निंग द वैल्यू ऑफ दोज इवन, कि अगर हमारे पास अगर मान ली एक चीज है, वी आर नॉट वेस्टिंग थिंग्स नाउ। तो दिस इज व्हाट यू नीड इज द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो कोई सिचुएशन होती है, वरी इज द टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो वरी के हटा के हमको हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, तो इसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ in short, that is any situation that you cannot control are the problems that we have to manage। जैसे इस समय की सिचुएशन able to control, क्योंकि हम दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, और जो चीज भी मैं बता रहा हूँ इट इज अबाउट द सोसाइटी। First of all, you have to take care of yourself, and then you can think about the society. A problem which you cannot manage in your life, मैं जब भी बात कर रहा हूँ, it is about your own life right now. अभी मैं सोसाइटी बात नहीं कर रहा हूँ, we're just talking about you yourself, you as an individual. Okay? जो situation control हो पाती, that leads to a feeling of negativity and creates fear, and this fear becomes worry. तो ये प्रॉब्लम फियर और वरी अगर स्टेज पे हम उसको रोक लेते हैं, तो ये हमारे सिचुएशन को कंट्रोल में रखता है। उससे अगर नहीं कंट्रोल कर पाते, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टेंशन आगे आता है, जो कि आपको बॉडीली हार्म है। तो कैसे करें कि हम इस चीज को प्रॉब्लम, फियर या वरी पे रोकें, दैट इज द थिंग वी नीड टू लर्न, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन नाउ, बिकॉज वी स्टार्टेड विद वरी। दिस वाज द मेन हिंड्रेंस टू हैप्पीनेस। We ended at stress, and there's a one word solution of all these, which is acceptance. Acceptance का क्या मतलब हुआ? Acceptance का मतलब जो situation है उसे accept करना। Acceptance does not mean inaction. Someone is trying to irritate me by making all these, वो अपने खुद ही को उसको फर्क पड़ रहा होगा, it is not going to do anything to me, but एक्सेप्टेंस इज ओके, ये हो रहा है। छोटी सी बात, अभी कुछ बच्चे, कुछ शैतान बच्चे हैं, कुछ हैं जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं, मेरे पास क्या, मैं गुस्सा हो जाऊं, चलो ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास इरेजर है, मैं इसको इरेज करता चल रहा हूँ। एक्सेप्टेंस हो कि ये लोग तो करते ही रहेंगे, दे आर नॉट हियर टू लिसन और अंडरस्टैंड टू, इन लोगों के लिए शायद ये लिखा भी नहीं, बट लेट इट बी। और वो इरिटेशन में और भी काम करते चले जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है इन लोगों को डांटता रहूं, इन लोगों को ध्यान दूं ज्यादा। दूसरा ऑप्शन है मेरे को रीजन मेरे पास, आई एम रिमूविंग देम एंड गोइंग अहेड विद दिस। तो दिस इज एक्सेप्टेंस। लाइव एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेंस की लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उस चीज को आराम से मेरा चलता चला जा रहा है। तो ये चीज एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन इनएक्शन। मैं बार बार एक चीज को कहता हूँ, एक्सेप्टेंस मींस ओके ये हो गया, दिस इज इट, कोविड का सिचुएशन आ गया, एक्सेप्ट ये है, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, होम को मतलब अपने घर पे रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो कुछ भी सॉल्यूशंस हम लोग को बताए जा रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ सिचुएशंस, अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को, दिस इज एक्सेप्टेंस। एक्सेस आप लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत बार किया होगा। कितनी बार आप लोगों ने किया कि भाई चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या है? दैट इज एक्सेप्टेंस, है ना? एक्सेप्टेंस, आपने परेशान होने बाद आपने एक्सेप्टेंस किया, तो आपने कर लिया ये होगा, जो होगा देखा जाएगा। मगर आपने ये जो होगा देखा जाएगा कब किया? जब आप परेशान हो जाए। वही अगर उसी एक्सेप्टेंस नोइंगली आप अप्लाई करेंगे पहले, तो आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप कम टाइम के लिए परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए
जब आप कम टाइम के लिए परेशान होंगे तो ये कौन को फर्क पड़ेगा इसका? दुनिया को फर्क नहीं पड़ना है, ये आप फर्क पड़ना है अपने आप। Someone is trying to irritate me very much. मैं इसको डिलीट करता जा रहा हूँ, वो और लिखता चला जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, एक यही खेल करते हैं हम लोग। जो भी लिख रहे हैं उसमें अपना नाम भी लिख दीजिए तो मुझे पता चल जाए। तो मे बी पता तो चलेगा, विल डूइंग टेकिंग एक्शन, बट फॉर नाउ पीपल। तो इस चीज का है एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन एक्शन। एक्सेप्टेंस मीन्स ओके कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, लिख रहा है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ वो इसको करेगा और मैं उसको डिलीट करता चल रहा हूँ। दिस इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन इन एक्शन। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे एक्सेप्टेंस की बहुत चीजें आती है, जैसे कोई सिचुएशन जब व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे वी, जो कि सिचुएशन अभी आप देख ही रहे हैं, तो गुस्सा आनी चाहिए। आई एम एक्सेप्ट वे थिंग्स आर हैपनिंग, आई एम एक्सेप्टिंग यार ये जो बेवकूफी कहा है, दैट पर्सन विल नॉट स्टॉप, ओके प्रॉब्लम, दैट इज गिविंग मी टॉलरेंस। तो दिस इज व्हाट इज नीडेड कि तो एक्सेप्टेंस में एक्सेप्ट किया जो चीज नहीं हो रही, जैसे उसको एक्सेप्ट किया, टॉलरेंस हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सी हम लोग का आती है कि समवन इज डूइंग बेटर देन यू, आपके क्लास में, आपके इंस्टीट्यूशन में, लैब में, आपके कहीं पर भी अगर लोग आपसे बेटर काम कर रहे हैं तो आपको सेंस एनवी आता है कि भाई वो मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? ओके अगला मुझसे अच्छा कर रहा है, क्या करें? एक्सेप्ट दैट द पर्सन इज डूइंग बेटर देन यू, एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जो भी आपसे बेटर कर रहा है आप उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन। इसमें दो चीज फीलिंग आती है, एक एनवी की फीलिंग आती है, एक जेलसी की भी फीलिंग आ सकती है। जेलसी में आप अगले की टांग खींच, भाई वो ना कर सके ये, और मेरे ख्याल से इसी टाइप की फीलिंग आ रही, जो जो भी लिख रहा है उसको कुछ जेलसी की फीलिंग आ रही कि ये कैसे बोल पा रहे हैं इस तरीके से, मे बी लेट इट बी दैट। और देखिए फिर एक ब्लू कलर का लाइन खींच दिया, लेट इट बी लाइक दिस। तो अगर कोई जेलसी की आ रही कि भाई अगले को उस काम को ना करने दो, तो उससे that is giving you a negative feeling. Envy, you are accepting that the other person is doing better than you, and then you try to do better at, okay? And it all ends up at gratitude. Gratitude, be grateful for whatever you have. आजकल की सिचुएशन में ग्रेटफुल काहे के लिए होना है कि आपके पास जो भी सिचुएशन है उसको बी ग्रेटफुल कि हाँ ये है। आप अगर जैसे मैं कहता आप इस लेक्चर को पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बी ग्रेटफुल दैट आई ईयर्स। आपके पास और कोई चीज है इसमें कर सकते हैं, तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव दैट। आप घर पे बैठ के इस अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप चीज को देख रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास ये है। कोई भी चीज आपके लिए छोटा सा भी कोई काम कर रहा है, बी ग्रेटफुल। इनमें से कोई चीज आपके पास इस समय ना हो या कभी लाइफ ना होती तो आपको लगता कि अरे इसकी कमी है, बट दैट बी ग्रेटफुल। जो भी किसी ने भी कुछ भी किया, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। किसी ने आपके लिए कोई भी चीज आपको दिया या कोई भी आपके लिए हेल्प कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मेनली क्या है, बी ग्रेटफुल टू द पर्सन हु you should be with that, grateful to the almighty, या जो भी आप फोर्स को बिलीव करते हैं, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अनकंडीशनल सरेंडर और अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड टू द ओन। हम लोग स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं, रिलीजियस की बात करते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिलीजन इज अ सेपरेट थिंग, दैट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर समथिंग जिसमें आपको जैसे भी जिस पे आप रिलीजन में है, चाहे आप उसके हिसाब से डूइंग योर थिंग, you are following a certain religious practices, you are going to the temple, to the mosque, you are going to the church, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपका रिलीजियस प्रैक्टिस है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इससे दैट नॉट स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अनकंडीशनल सरेंडर टू द अननोन, एंड हु इज दैट अननोन, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं। जैसे मैं, और इसमें क्योंकि हम लोग अनकंडीशनल सरेंडर के बाद एक और आती है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, वी ट्राई टू टेक इट कि हाँ ये अच्छा काम मैंने किया,
अगर कोई खराब काम होता है, हे भगवान ऐसा क्यों किया, ये टेंडेंसी है, नथिंग दैट इट्स अननेचुरल कि भाई हम लोग सभी लोग यही करते ही, बट उसी को जब इसको आप अपना अपने हिसाब से रिलेट अपने आप को करें कि हम हर कंडीशन में एक ही को ब्लेम करें और एक ही को क्रेडिट दें, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। छोटी सी बात है, मैं अपना एग्जांपल बता रहा है, कन्हैया कृष्ण भक्त हूँ, तो कन्हैया को मैं इसी तरीके से करता हूँ कि भाई कन्हैया हर चीज को तुम संभालो, कोई काम होता है वही संभालो, कोई चीज है आप लोग भी करते होंगे, नोई करते हैं कि अनोइंगली करते हैं, इस चीज पे वही चीज है कि भाई आप संभालो। अब मेरे लिए मैं आप ये बता रहा हूँ, इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुली आई हैव मैनेज्ड दिस। मैं पता है कि भाई बैक एंड पे वो काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे मैं हूँ, बैक एंड पे वो काम कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो चलता चला जा रहा है। इसी का एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया नाम में हो रहा है, जो जो चीजें अभी मेरे बारे में कही भी गई वो सारी चीजें मैं क्रेडिट और डिस्क सब उधर ही ट्रांसफर करता हूँ। एंड दिस इज नथिंग दैट यू कैन डू, एक दिन में नहीं होता, उनके ग्रेस होता है तब आप इस चीज को कर पाते हैं। और इसमें कोई भी चीज है, जैसे मे बी आज अभी 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसमें 500 पार्टिसिपेंट में आई डोंट एक्सपेक्ट एनी ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड सब कुछ क्या क्या करें क्या ना करें। इसमें क्या करना है कि कुछ मे बी 2 4 10 लोगों को भी आपकी समझ में आए, तो आप लोग के इट इज सक्सेस फॉर मी कि हाँ इस हो रहा है। बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम पीपल कि हाँ सर आपने ऐसे बताया तो हो गया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बताया, वो काम होना था, आपने मुझसे सुना और वो काम हुआ, दैट इज व्हाट इट इज एक्चुअल थिंग। इसमें क्या है कि यू हैव टू पुट योर फेथ, फेथ इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑल। जो कुछ भी है आप सिचुएशन को एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप लोग सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता। जब आपको पता है तो आपको कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है बात है। वही चीज देखिए, अगर कोई भी आपके साथ का व्यक्ति परेशान हो रहा है या कोई किसी को आपको लगता है, तो आप उसको क्या बात बताओगे? जितनी चीजें मैं अभी तक बता चुका हूँ या आगे बताऊंगा वो सारी चीज आप उसको बताओगे कि हाँ ये करो भाई, अरे ऐसे है, चलो ये डेस्टिनी एक्सेप्ट करो और वही होता है, ये सारी चीजें आप बताओगे। बट जब आपको खुद कोई प्रॉब्लम होती है तब आपको ये सब चीजें याद नहीं रहती। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, इज trying to remember when you are in a problem, to remember some of these things. And believe me, ये आप अपने 7 से 10% से ज्यादा सिचुएशंस में नहीं लगा सकते हो। जब यह है तब एक्सेप्टेंस को लगाइए, तब देखिए उसका असर क्या होता है। और इसका एक और चीज एग्जाम्पल हमेशा बताता हूँ कि ये वैसी ही चीज है कि आप अपने जिस भी शहर में वहां के कहीं का समोसा, कहीं का रसगुल्ला, कहीं गुलाब जामुन, इस समय लॉकडाउन के टाइम में ये सब चीजें नहीं मिल रहे, बट इन सब का नाम लेना जरूरी है भाई। जो कुछ भी है इस सब चीजों को कर रहे हैं जब, तो क्यों बार बार उसी दुकान से जाके लेके आ जाते हैं? क्योंकि वहां की वो चीज अच्छी लगती है। वैसे ही एक्सेप्टेंस भी है। जब आप एक्सेप्टेंस के बारे में याद आए कि भाई सर ने लेक्चर दिया था, या कहीं पर भी याद आ जाए कि भाई एक्सेप्टेंस ट्राई करते हैं, वहां पर आप एक्सेप्ट को अप्लाई करिए। एक सिचुएशन में आपने अप्लाई किया, बिलीव मी ये अच्छा लगना ही है, क्योंकि सिचुएशन में आप एक्सेप्टेंस हुआ तो आपने सिचुएशन कुछ थोड़ा सा बहुत ठीक होता है। एक बार आपने लगाया, आपको अच्छा लगा, फिर आप पता चलो कुछ सिचुएशन को याद ही नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया, दोबारा चलो जब आ जाए तब इसको एक्सेप्टेंस लगाओ, इसी बार जब याद आए तब लगाओ। ये गैप बहुत बड़ा होता है इनिशियली। उसके बाद जिस समय आपको ये धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मतलब और ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप इस चीज को एक्सेप्टेंस ट्राई करना शुरू करते हैं। और बिलीव मी तब अननोइंग ट्राई करते हैं, होता है ये ऐसा, नोइंगली आप अप्लाई करते हैं। नोइंगली अप्लाई करने के बाद से मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको नहीं पता है, इट इज जस्ट अप्लाई acceptance knowingly. And again, this is something like an example which I always give. आप सामने रसगुल्ला रखा है, इमेजिन करिए लॉकडाउन के टाइम में रसगुल्ला, क्या बात, मिल जाए तो अच्छी बात है, 2 4 और खा लें,
कोई बात नहीं, रसगुल्ला रखा है, किसी से कह दिया चम्मच से आपको उसको मुंह में आपको दिया उसने, चबलाना आपको खुद है। ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ या कोई भी आपको भी पता है या कहीं और से भी आप सुनते हैं, ये सब चीजों को अप्लाई आपको खुद करना है, कोई आपके लिए अप्लाई करके नहीं जाए। रसगुल्ले का टेस्ट अगर आपको लेना है तो आपको खुद चबलाना है, तब आपको उसका टेस्ट मिलेगा। So this is what you need to remember, you have to do it for yourself. No one else is going to help this. बता सब लोग सकते हैं, करना खुद को है। और जब आप इस चीज को अप्लाई करना है तो इस चीज का सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खुद को ठीक रखना है, फिर आपके फैमिली को ठीक रखना है, फिर दुनिया में और चीज आती है। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान रखकर काम करेंगे तो आपके लिए कभी प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं होगी। इसी रिलेटेड है आपका डेस्टिनी। लोग कहते हैं भाई ये डेस्टिनी क्या चीज होती है? भाग्य। डेस्टिनी इज एनी सिचुएशन दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपने चूज भी नहीं किया है, दे केम टू यू। बट उस डेस्टिनी के सिचुएशन में आप तो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपका चॉइस। आप उस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस को अप्लाई करते हैं, या जैसे अभी हमारा ये आगे कोविड की सिचुएशन, ये दिस इज समथिंग डेस्टिनी हैज ब्रॉट इन फॉर अस। फरवरी में कोई कहता है यार आप लोग को घर के अंदर बैठना इतने दिन तक, तो आपको नहीं समझ में आएगा, कौन घर में बैठेगा ना, मेरे को काम करना है। और आज के तारीख में क्या आप लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो ये डेस्टिनी की जो हमारे सामने ये आया, हम लोग की चॉइस थी, हम उसको क्रिकेट से लेके जाएं। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो मैं डेस्टिनी मैं हर लेक्चर में ही देता हूं, क्योंकि दिस इज समथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। जब मैंने इसको एक्सपीरियंस को नोइंगली अप्लाई किया था, बहुत से लोगों ने इसको सुना भी इस स्टोरी को, बट स्टिल जितनी बार रिपीट, आप लोग तो मे भी 1 या 2 बार सुन रहे हैं, मैं तो इसको 200 बार रिपीट कर चुका हूँ। फिर भी जब भी मैं इसमें बताता हूँ, ये मुझे हिम्मत देता है कि हाँ, जब सिचुएशन में ऐसे किया था तो हर सिचुएशन में आप ऐसे कर सकते हैं। यू माइट बी हैविंग मेनी एग्जांपल्स इन योर ओन लाइफ। जब आपने इस एक्सेप्टेंस को नोइंगली या अननोइंगली अप्लाई किया, अगर नोइंगली अप्लाई किया, यू ट्राई टू रिपीट दैट सिचुएशन। अननोइंगली अप्लाई किया तो दैट बिकम्स ओके, आगे से हम इसको नोइंगली भी अप्लाई करेंगे। एंड दिस हैपेंड इन 2016। उसमें क्या होता है, आई वाज टेकिंग जब हम लोग एडमिशंस का प्रोसेस चल रहा था, वी वर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। ऑन आर्ट्स कॉलेज का जो एग्जाम था, दैट वाज शेड्यूल्ड ऑन द 6th of June। somehow कुछ एरर हो गया था उसमें, क्या कहते हैं, आपका एडमिट कार्ड जनरेट करने में, जिसमें एडमिट कार्ड पे 5th of June चला गया था। थोड़ी देर चला था तो हम लोग को जब पता चला, वी रेक्टिफाइड दैट प्रॉब्लम एंड देन वी वेंट अहेड विद द एग्जाम, और जाके जो भी था। बट ऑन द हम लोग जो भी प्रोसेस लेना था, एसएमएस किया, नोटिस लगाया, प्रेस नोट भेजा, सब कुछ ठीक था। तो इसमें क्या व्हाट वाज व्हेन वी ऑन 5th of June दैट ऐसा हुआ कि जिस समय एग्जाम का दिन था, हमारे पास उनका फोन आया कॉलेज के प्रिंसिपल का कि सर ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं, 70-80 लोग। तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा उनको समझाओ गले में बहाना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें कोशिश करो। 15-20 मिनट बाद फिर फोन आया कि सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, प्रेशर्स वाले भी आ गए, थोड़ा सा आप देख आके। मैंने कहा चलो देखता हूँ। पहुंचा, जब पहुंचा तो वहां पर देखा काफी लोग, भीड़ काफी, और जब पता चल गया कोऑर्डिनेटर है तो उसने मुझे घेर लिया। सारे लोगों ने मुझे किया और सब चिल्लाना शुरू कि आप में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैंने कहा, मैंने जोर से चिल्लाया कि ओके, मैं मानता हूँ कि गलती है एंड चीजों को इस तरीके था। तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए शांत हुए, फिर शुरू का चिल्लाना। तो फिर मैंने चिल्लाया, मैं जोर से चिल्लाया कि चलो मैं मानता हूँ ना, मेरी इस वजह से गलती ये हुआ। तो कुछ लोग सुनना शुरू किया कि है क्या। जब सुनना शुरू किया तो मैंने उनको बताया, देखिए ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसको हमने ये सोल्यूशन किया, हमने एसएमएस किया, प्रेस नोट दिया, सब चीजें किया। कुछ लोगों ने कहा कि सर मुझे ऐसे नहीं मिला। वहीं कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं सर मुझे एसएमएस मिला, बट मैं तो देखने के चले आया। कल 10 लोगों ने ऐसा कहा कि सर मैंने तो फॉर्म में मोबाइल नंबर गलत थे, इस चक्कर में ना आया हो एसएमएस।
सिचुएशन धीरे धीरे करके जहां पर चिल्ला चिल्ली चल रही थी, प्रेस वाले फोटो भी खींच रहे थे, वहां पर सिचुएशन वाज गेटिंग थोड़ा स्मूदन आउट हो रही थी। और धीरे धीरे करके सबने कहा भाई चलो कल आ जाएंगे, इस तरीके से चाह गए। 5 लड़के 3 लड़कियां और उनमें से एक अंदर रह गए थे, जो कि बाहर से आए थे। जो उन्होंने कहा सर हमें रहने की जगह मिल जाए तो हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। मैंने अपने यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में डॉर्मेट्री में लड़कों का अरेंजमेंट किया और कैलाश में लड़कियों का अरेंजमेंट किया। वहां के उनसे गेस्ट, उन लोगों से जो भी वार्डन्स और हॉस्टल के गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे, उनसे कहा इन लोगों से चार्ज मत किया कुछ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो उनका कि ठीक है, गेस्ट चार्जेस उस पे यूनिवर्सिटी विल पे द मनी, इसको करके उन्होंने उनको रोक दिया। ऐसी सिचुएशन थी जो अगर प्रेस में आते टाइम कोई इमेजिन नहीं कर सकती ये सिचुएशन का हो, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, या क्या प्रेस पे हमारा इसका छोटी सी चीज करने में प्रेस में पता नहीं क्या क्या हेडलाइंस आती हैं। इस पे मुझे हेडलाइन मिली कि एलयू ने किया बाहर से आने अभ्यर्थियों को ठहरने का इंतजाम और एक दिन पहले एंट्रेंस पॉलिसी थे। दिस हेडलाइन दैट वी रिसीव्ड व्हिच इज इमेजिनेबल इन अ सिचुएशन। अगर मैं चाहता तो नॉर्मल तरीके से उनसे भेज सकता था, मेरे पास सारे प्रूफ्स थे, सारे आई हैड ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, बट आई डिड नॉट टेक दैट। जस्ट एक्सेप्टेंस को मैंने अप्लाई किया नोइंगली। दिस इज जस्ट वन ऑफ द सिचुएशंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। इसके मैं पता नहीं कितने सिचुएशंस अपनी लाइफ के बता सकता हूँ जो एक्सेप्टेंस हमने नोइंगली, कुछ में अनोइंगली किया, कुछ में नोइंगली किया, तो सारी चीजें चल रही थी उसके हिसाब से। तो ये आपके अगर अपने लाइफ में ध्यान दें तो आपके लाइफ में भी बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें आपने नोइंगली अनोइंगली एक्सेप्टेंस को अप्लाई जरूर किया होगा। ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स हैं, अपने आप सोचिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या है, कैसे आपने उस सिचुएशन में किया। एंड दोज सिचुएशंस वेयर आई वुड बी इंस्पायर्ड फॉर यू टू अप्लाई एक्सेप्टेंस मोर फ्रीक्वेंटली इन अ नोइंगली मैनर। एक और चीज होती है जिससे हम खुश रहने की बात करते हैं कोई भी सिचुएशन में, कि सबसे बड़ी हम परेशान होते हैं अगर हम थक जाते हैं। इसलिए रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड इज अनदर थिंग व्हिच यू नीड टू remember. And our heart is one of the things that gives you an inspiration for this. Stays stationary for 35 minutes in an hour on an average. वो हर एक्शन के बीच रुकता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रुका, एक्सपैंड हुआ रुका। तो ये चीज को आपको ध्यान अपने जिंदगी में रखना है कि यू ट्राई टू रेस्ट, डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ इन सच अ वे। बहुत ज्यादा सिचुएशन है ऐसी जब थक गए, थकने के बाद आप परेशान ही होंगे। तो इसको अगर आप रेस्ट कर करके या कुछ ब्रेक्स दे देके कोई काम करना है तो उसको अगर करेंगे दैट हेल्प्स यू दैट विल आल्सो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है दैट इज द पावर ऑफ थॉट। थॉट्स आर अनअवॉइडेबल। अब तो आपके दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे, अच्छे और ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि पॉजिटिव्स को नहीं सोचता ज्यादा। नेगेटिव कुछ भी हुआ बारे में जरूर सोचता रहेगा, अरे ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, मैंने ऐसा क्यों, ये सारी चीजें हैं। और थॉट से कनेक्टेड है आपका फीलिंग्स एंड एक्शन। जैसे आप सोचेंगे वैसे आपकी फीलिंग एक्शन होगा, जैसे आपकी फीलिंग्स होगी एक्शन एंड थॉट होगा, जैसे होगा वैसे थॉट और थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे। तो आपको तीनों से किसी एक को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इस पूरे साइकिल को आप संभाल सकते हैं। और सबसे आसान चीज कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके हैं थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। देयर इज वन थिंग थॉटलेसनेस व्हिच कम्स बाय प्रैक्टिस। देयर आर सर्टेन मेडिटेशन टेक्निक। मेडिटेशन की तो छोटी सी लिस्ट है, ये बहुत सी लंबी लिस्ट है जिसमें आप जिस समय मेडिटेशन के थ्रू you can control your thoughts, you can control your mind and control plenty of things. बाकी सारे मेडिटेशन के जो टेक्निक्स हैं वो अपना अपना उसका इम्पोर्टेंस है, बट मेन वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल, वो आप खुद से मिलाता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट पे लाता है। तो आप अगर ध्यान दीजिए, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। जो भी परेशानी होती है या तो वो पास्ट से होती है, कुछ हो चुकी होती है उसको लेकर आप परेशान होते हैं, या कोई चीज होने वाली होती है। पास्ट या फ्यूचर दोनों के बारे में आप कुछ कर सकते हैं। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही पल है। आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट पे अगर आप ध्यान दें, बिल्कुल इसी समय मोमेंट, आपको कोई परेशानी नहीं, शांति से बैठे हैं, आपसे कुछ लेक्चर है, पता नहीं कौन
एक यूनिवर्सिटी के टीचर आके लेक्चर दे रहे हैं, वही एक परेशानी का कारण हो सकता है, बाकी कोई परेशानी नहीं है. दैट इज प्रेजेंट मोमेंट. This, if you are in present moment, nothing is going to और प्रेजेंट मोमेंट का एक बहुत बड़ा जो है कि जिस समय आप अपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, या बहुत कुछ ऐसा है, अरे टाइम का पता ही नहीं चला, आपको 4 घंटे 5 घंटे निकल गए, अरे पता ही ना टाइम कैसे निकला. दैट मीन्स यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर एंजॉयिंग मोमेंट. उस समय आप अगर ध्यान दें, अभी ना पीछे की ना आगे कुछ नहीं सोचते हो, सिर्फ उसी समय के बारे में सोचते हो. And the easiest way to get to the present moment is conscious breathing. यहाँ पर मैं वैसे तो नॉर्मली अगर होता है तो उसमें मैं पूछता हूँ कि कितने लोग रेगुलर मेडिटेट करते हैं, तो फ्यू ऑफ देम, कुछ लोग हाथ मत उठाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं. बट एक मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ, which is conscious breathing, which is also known as the simplest form of meditation. Conscious breathing is something that you are taking in your breath. और उसको ब्रीदिंग तो आपको नॉर्मल रेगुलर चल रही है, किसी से भी पूछे कि क्लास नहीं लेता है तो कोई यस नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो खैर अलग चीज है. बट व्हेन यू आर ब्रीदिंग, व्हाट इज हैपनिंग इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ध्यान दें, यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ टू द एनवायरनमेंट. पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है और आप पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, तो आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं. तो जिस समय आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कमिंग अप, कि आपका एक तो चीज ये हो गया. दूसरी चीज क्या है कि कॉन्शियसली सांस लेने का मतलब जो आपका ऑक्सीजन इनटेक है, अपटेक है, वो बढ़ा है. वो कैसे बढ़ता है? क्योंकि नोइंगली सांस ले रहे हो, कॉन्शियसली आप सांस रहे हो. इट इज समथिंग लाइक दैट. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ गुड नाइस गुड फूड. आपके सामने बिल्कुल आपका मनपसंद खाना रखा है, और जब खाने को आप खाने चलते हैं, उससे पहले आपने किसी फ्रेंड को फोन कर दीजिए. फोन पे बात करते करते जब खाना खाएंगे तो आपको उस खाने का टेस्ट पता चलेगा. So this is what happens कि need to, if you really want to know the taste or know anything, you have to do it knowingly. तो वैसे ही है कि जैसे आपको खाना खा रहे हैं, फोन बंद करके आप खाना खाएंगे तो आपको खाने का टेस्ट पता चलता है. आप सांस की भी बात करते हैं. कॉन्शियस ब्रीदिंग है, आप नाक सांस पे ध्यान देते हुए सांस ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं इसके बारे में बता. जब आप एक छोटा सा एक्सरसाइज आपसे हम करा रहे हैं, एक बार सांस लीजिए और नाक पे जो सेंसेशन हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए जरा सा, कि कोई सेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ, सेंसेशन हुआ. आप लोगों बहुत से लोगों ने देखा हो कि हाँ सेंसेशन हो रहा है सर. उस सेंसेशन पे ध्यान देना है. उस सेंसेशन से क्या हो रहा है? पहली चीज, आप ये नोइंगली सांस है. दूसरी चीज, आपके सारे थॉट्स उस सेंसेशन पे को महसूस करने पे आ रहे हैं. दैट मींस यू आर कमिंग टू प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट मोमेंट पे आके आप इस चीज पे प्रॉब्लम नहीं है. तो जिस प्रेजेंट मोमेंट पे आ रहे हो, वहां पर आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन भी हो रहा है, कॉन्शियसली आप सांस भी ले रहे हो, ऑक्सीजन अपटेक इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तो ये सब चीजें जैसे आप कर रहे हैं, तो that helps in controlling plenty of for you. इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखिए कि जिस समय कब करना है. सांस आप पूरे टाइम लेते रहते, जब मन है तब कर सकते हैं इस चीज को. फिर कितने बार करना है, जितनी बार आप कर सकें, इसमें भी कोई नंबर नहीं है. जब आप उतनी बार तब कर सकते हैं. 1 बार 2 बार 10 बार 100 जितनी बार कर सकते हैं. और जब एक बार जैसे आपका बोलते बोलते जैसे आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा, ये मैं बोलते बोलते भी कई बार 20 चीज को मैंने किया है, क्योंकि इससे आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर होता है. तो लेट अस ट्राई इट, दिस ब्रीदिंग, द सिंपलेस्ट मेडिटेशन. वी कैन 5 ब्रेथ्स, 5 बार सांस अंदर लेंगे, 5 बार सांस बाहर करेंगे सब लोग. और उसके बाद चीज को कम से कम आप लोग सब लोग कह सकते हैं कि हाँ मैंने मेडिटेशन जिंदगी एक बार तो किया ही है, because this is a simple form of meditation. So we will try this 5 times and you can continue with this. अब आप करना चाहें, जितनी बार करना चाहें, you can do it. So we'll start it now, 5 times from now. So this is
simplest form of meditation, which is known as conscious breathing. Do it any number of times, जितनी बार कर सकते हैं, जितनी बार दिन में कर सकते हैं, इसको ट्राई करिएगा। और आप लोग हर स्लाइड में नीचे एक वेब देख रहे हैं, anilmishra.name। किसी को कोई प्रॉब्लम दिखे, ये जो चीजें मैंने बताया उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो वहां पर मेरा फोन नंबर है, ईमेल आईडी, मुझे तुरंत बताइए कि सर आपने ये चीज बताई और ये चीज फायदा नहीं कर रही है। ये जरूर मैं फीडबैक के लिए जरूर आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा। अगर अच्छा लगे तो मत, फीडबैक नहीं चाहिए। अगर गड़बड़ है तो जरूर मुझे बताइए कि सर आपने ये चीज कहा था, इससे फायदा नहीं हुआ। एंड ट्राई टू इट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प। एक और चीज है, वर्ड्स ऑफ विजडम का है कि समटाइम्स बेटर टू बंक अ क्लास एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स बिकॉज़ टुडे व्हेन आई लुक, मार्क्स नेवर मेक मी लाइफ बट मेमोरीज डू। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्लास बंक करो, सिर्फ ये बताने का पर्पस है कि जिस समय उसमें आगे आप कितने मार्क्स हैं, आपका डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, 90% मार्क्स है, 70% मार्क्स है, दे डोंट रन इन लाइफ एनी मोर। अगर आप अपने फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं, कभी पुराने फ्रेंड्स अगर मिलते हैं हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के या किसी क्लास के, तो कभी उनसे आप कितनी बार बात करते हो, तुम्हारे इतने परसेंट मार्क्स है, मेरे इतने परसेंट मार्क्स है? कोई ये नहीं बात करता। सब क्या बात करते हैं कि भाई जो भी शैतानियां किया होगा वो आपको याद रहेगा। इसमें मैं अपने दोस्त का नाम ले रहा हूँ, एक मिस्टर हर्ष नारायण है, एक मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह है। दोनों को हमेशा जब मिलते तो एक चीज का वो कहते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड का टॉपर हमारे बीच बैठ कर इम्तिहान दिया था। ज्ञानेश कुमार था एक लड़के का नाम, जो जिसने यूपी बोर्ड का टॉपर किया था। और मैम आपके कॉलेज के बगल में खालसा इंटर कॉलेज है, उसमें हम लोग का सेंटर था। वहां पर ज्ञानेश बैठता था, उसके एक पीछे हर्ष और आगे ज्ञानेंद्र। तो दोनों लोगों को ये खुश है। अब हो सकता है मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी कुछ सुन रहे हो तो उन लोगों को जरूर ये चीज याद आएगा कि वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम कम से कम बाकी हमारे मार्क्स या जो हो, हम इतना कह सकते हैं यूपी बोर्ड का टॉपर बीच में बैठा था, हम दोनों के बीच में बैठा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस समय आप भी सोचिए, जिस समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तब कितनी बार आप मार्क्स की बात करते हैं, वो दे डोंट मैटर। तो उसके लिए खास तौर से मैं ये चीज को बताना चाहूंगा कि जो भी सिचुएशन हो, जैसे इस समय एग्जाम नहीं हो रहा है, ये नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, जो भी सिचुएशन है, आगे चल के मार्क्स डोंट मैटर मच। पर भी मार्क्स किसी भी स्टेज में, नौकरी में या किसी कोई भी काम में आपके मार्क्स उस चीज को नहीं दिलाते हैं। आपकी खुद की एबिलिटी है, उसको डेवलप करिए, एंड दैट विल हेल्प यू। और एबिलिटी डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्माइल। स्माइल के बारे में जब सब लोग एक बार स्माइल करिए, जो शक्ल मुझे देख रहे हो तो मुझे देख लो स्माइल करते हुए। सुरभि मैम और मधुरी मैम तो देख रहे हैं सामने सामने, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। आप लोग स्माइल का क्या है कि दो चीजें हैं। पहली चीज, स्माइल जिस समय आप करते हैं तो बहुत सी चीजें, अगर आपको परेशानी भी होती है, उलझन भी होती है, इसको भी ट्राई करिएगा। तो ये भी एक होमवर्क है आपके लिए कि अगर कभी भी ध्यान आ जाए कोई उलझन लग रही है, परेशानी लग रही है, तो करिए, खुद को देख, खुद ही के ऊपर देखिएगा, ना सब कुछ थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। और दूसरी चीज क्या है कि ये खास तौर से जो बाकी लेडीज के लिए, खास तौर से आजकल जेंट्स भी एंटी रिंकल क्रीम लगाने लगे हैं। स्माइल से बेटर रिंकल क्रीम कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस आप स्माइल करते हैं आपके फेस के 53 मसल्स मूव करते हैं। मसल्स मूव करना मतलब मसल्स की एक्सरसाइज। मसल्स के साथ क्या है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना फर्म होगा, और फर्म होगा तो रिंकल्स नहीं होंगे। तो आप लोग जिस बार मन आए दिन में स्माइल करते रहिए, एक दूसरे देख के स्माइल करिए, खुद को देख के स्माइल करिए और खुश रहिए। बिकॉज हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी हैव टू इनकलकेट द हैबिट। कोई हमें आके कुछ लोग बता सकते हैं, और आप भी चाहें तो 10 बहुतों को बता सकते हैं कि खुश रहना, कैसे रहना, सब कुछ पता है। बट खुद के लिए जिस समय बात है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एरोप्लेन में जब आप चलते हैं तो एयर होस्टेस क्या इंस्ट्रक्शन देती है, अगर ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरा तो पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर दूसरों की हेल्प करिए। वही चीज लाइफ के साथ है। अगर आप खुद ठीक हैं तब आप अपने फैमिली के बारे में ठीक कर सकते हैं और अपनी दुनिया के बारे सबको ठीक कर सकते हैं। और अगर खुद की तबीयत खराब है तो यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ एनीथिंग एल्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर द प्रायोरिटी, फर्स्ट इज यू, सेकंड इज योर फैमिली, एंड देन कम्स एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड।
और इस सीक्वेंस को हम लोग यूजुअली भूल जाते हैं। इस सीक्वेंस में हम लोग कहते हैं हमारी नौकरी सबसे पहले है, फैमिली के तो छोड़ दो, हमारे बारे में तो सोचे ही मत, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। नहीं, ये खुद को फिट रखिए, फिर फैमिली के बारे में ध्यान दीजिए, एंड देन एनीथिंग एल्स इज गोइंग टू कम। And lastly, the most important thing to be happy is what I'm going to adopt now, that is silence. Thank you very much for your attention. And if you all want to ask any questions, you are free. Surabhi ma'am? Surabhi ma'am? I think you need to unmute yourself, Surabhi ma'am. Surabhi ma'am, there is problem unmuting yourself. Majumdar ma'am. Well, by the time आप लोग manage करें unmute होने का, that was so lovely, commendable, and we have with us Professor A.K. Before I invite the house to put the questions, my teacher A.K. Sen Gupta sir ने शुरू से ज्वाइन कर लिया था, but तब तक अनिल सर का शुरू हो गया था लेक्चर, तो उस समय फिर हमने इंटरप्ट करना ठीक नहीं समझा। तो that was great. And ma'am, Surabhi ma'am. हाँ जी, thank you ma'am. Thank you. You are unmuted, ma'am. Yes, yes. Yes. Thank you ma'am. And sir, बहुत ही बढ़िया और इतना एनालिटिकल सर जो आपने हमें हैप्पीनेस केमिस्ट्री समझाई है, तो I must say that it was really a pleasure listening to you sir. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो हम लोग मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शायद भूल गए। जैसे आपने कहा कि रेस्ट करना, स्माइल करना, तो शायद ये अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है, जो कहीं ना कहीं जब हम इन मोड्स में होते हैं, चाहे हम हंसने के, खुश होने के मोड में होते हैं या हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें सोच पाते हैं, पॉजिटिवली सोच पाते हैं। तो इनफैक्ट वो मतलब दैट वाज टू गुड, क्योंकि मुझे लगता है मैंने इनफैक्ट ये दोनों वर्ड्स भी लिखे और कुछ आपके बड़ी अच्छी बातें जो मुझे भी लगी, जो मैंने लिखा अपने लिए कि एक बार मैं अपने लिए भी एक जगह कहीं लिख के इसे अपने रूम में लगा लूंगी, क्योंकि शायद ये कभी कभी जो आपने एक बात कही कि छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती, हमें लगता है शायद कुछ बहुत बड़ा होगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। लाइफ की छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आपने सर एक बात कही कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन डेस्टिनेशन, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात सही है सर। और एक और ही बहुत ही जो आपने एक प्यारी बात कही सर, वो ये थी कि शायद वाकई एक कितना बार हम लोग को बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं, हम भी कभी टेंशन में होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, है ना, जस्ट हैव फेथ इन गॉड और सब ठीक हो जाएगा। और वाकई सर नेचर में कुछ अपनी पावर होती है। मैंने ये देखा बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद था सर। और कुछ हमारे आसपास जो लोग थे, और अभी भी मैं देख रही हूँ, चाहे हमारा मैनेजमेंट है, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी है सर, ऑल आवर टीचर्स, मधुरिमा मैम, आप इनफैक्ट कभी भी कोई दिक्कत होती है, जैसे आपने कहा कि बीएड के एग्जाम में भी हम लोग कई बार सर फेस करते हैं, पर शायद हमारे आसपास इतने अच्छे लोग होते हैं कि हम उस चीज को शायद कोप अप कर ले जाते हैं। तो बड़ा पर एक बात ये है सर कि हाँ, खुद में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और शायद हंसेंगे, खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद नेचर भी सपोर्ट करता है। एक सर मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें शायद ये भी लिखा था कि जो कुछ हम मतलब नेचर को देते हैं, चाहे वो खुशी है, पॉजिटिविटी है, तो वो हमें मैग्नीफाई करके लौटा देती है। तो मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। और आज कई सारी चीजें सर आपने जो बात कही, मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद मैं बहुत टेंशन में कभी कभी हो जाते हैं, प्रेशर होता है, तो हम लोग मेडिटेशन करना चाहिए। पर आज आपने इतना सिंपल वे मुझे बताया, मैं आज आपसे यही क्वेश्चन था मेरा लास्ट में कि सर एक मतलब बहुत आसान सी टेक्निक बता दीजिए कि हम मेडिटेशन कर पाए, बिकॉज हम कभी नहीं समझ पाए कि मेडिटेशन क्या होता है। तो मुझे बड़ा मेरे मजा आया साथ सर। ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मुझे मेडिटेशन कभी समझ में नहीं आता क्या करूँ, पर हाँ। ये एक ऐसी चीज है जो हो जाती है। जी सर, जी सर। मुझे लगता है सर जैसे कभी कभी हम कोई चीज एंजॉय करते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है सर कभी हम जैसे गाड़ी चला के घर भी आते हैं, तो वो पल ऐसा होता है, कितनी भी टेंशन होती है जाने कहाँ चला जाता है, मतलब दिमाग से वो प्रॉब्लम्स चली जाती है। तो शायद सर यही मेडिटेशन है। मैंने सोचा आपसे पूछूंगी सर, क्या यही मेडिटेशन है सर?
anything that you can consider जो which makes you is meditation. सर अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर काम करना बहुत अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल जी। मन लगा के हमको कर रहे हैं, तो that is जी, also meditation. Whichever things Sir. gives you happiness, that is meditation. And बाकी और वैसे तो meditation का बहुत definitions हैं, but whatever is making you happy, that is meditation for you. सर नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन सर। एंड मैं मधुरिमा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर मैम आपने ये हम लोग का सेशन रखा। सर को भी सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना सर सुंदर व्याख्यान हम लोगों को आपने दिया, और बहुत सारी चीजें जो हमें बहुत ऑब्वियस लगती हैं वो कभी कभी सुन के याद आता है कि नहीं, इट वॉज नॉट सो ऑब्वियस, और कभी कभी उसको हमें कोई झकझोर दे तो हमें याद रहता है। और जैसा कि मैम ने कहा सर, सेन गुप्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, और हमारे गुरु रहे हैं। और सर कॉलेज के चाहे वो खुशियां हो चाहे प्रॉब्लम्स हो, सर हैड बीन अ ग्रेट मेंटर एंड एडवाइजर एंड ही हैज शोन अस वे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वेट कर रहे थे हम लोग सर। और इनफैक्ट बहुत आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने समय निकाला सर। और आई वुड लाइक यू टू ब्लेस अस ऑल सर, प्लीज सर, ओवर टू यू सर। Thank you. Anil, can I put a word? Sure sir. अरे you are Anil, our inspiration sir. thank you very much. It's a pleasure listening to you, and it's an area, it's a topic which really concern everybody. और खास करके मधुरिमा लाल जी का तो क्या बात है, कोई जवाब नहीं है। टू गुड। आपके स्टूडेंट हैं सर, आपने जो सिखाया वही आता है बस। I हम congratulate. लोग सब आप ही से सर सब हाँ सर, तो अगर आप हमारी आप- तारीफ कर रहे हैं सर, इनडायरेक्टली आप अपनी तारीफ कर रहे हैं सर, इसलिए हम हाँ करिए। हैप्पीनेस का कौन सा पैरामीटर में आता है आई डू नॉट नो, बट ये है कि कॉलेज का मैनेजमेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, दे डिजर्व रियल अप्लॉज, रियल अप्रिशिएशन। बहुत अच्छा काम किया, क्विकली, वेरी शॉर्टली, and I feel obliged when they always discuss with me कि इसको कैसे क्या करना है। Coming back to the nature of the topic, it's a very important topic. उसमें happiness का जो definition है, happiness का जो concept है, ये आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी वेबिनार में पेपर आपने प्रेजेंट किया था, आपका लेक्चर था, it was wonderful. Happiness का जो इंडेक्स है, that composite index comprises of what parameters? जो आपने समझाया उसमें couple of parameters में आपने material prosperity के बारे में silent रहा. Maybe you have taken it for granted. No sir, there is, you finish Let me complete. Yeah. Material prosperity, which is connected with economic prosperity, which is connected with happiness also. Second thing is to naturally, when we talk about happiness, for that we need to contrive happiness index. And then we try to apply all the possible approaches, जैसे आपने कहा practical approach. All the possible approaches to maximize happiness. I think that is the end one. Usme couple of factors which you have also pointed out. Unconditional surrender to the divine or to Almighty, जिसमें आपने religious का role, churches, temples की बात किया. आपने positively सोचने के लिए, think positively, that also you have mentioned. You have also talked about transcendental peace. That is also very important, which is definitely different and definitely separable from material peace. In this connection, I would like to point you out one thing, what Swami Vivekananda has categorically and ultimately pointed out, and Ramakrishna Paramhansa also pointed out.
Service to mankind is the service to God. So that point you have not mentioned here. We should cultivate the habit of doing and rendering services to humanity in different ways, whatever way we can. Because ultimately that will lead to अनम्यूट का मैम, मतलब आप म्यूट हो गई हैं मैम, एक मिनट हम देख मैम, service वो to हमें God. किसी ने ना कोहोस्ट से हटा दिया था, इसलिए हमसे हो नहीं पा रहा था, फिर मैम को फोन करना पड़ा। जिया अपने को म्यूट करो, जिया म्यूट करो, सर बोल रहे हैं, अपने को म्यूट करो। सॉरी सर जी। Fine. So service to humanity is service, ultimate service to mankind. This is important. This point needs to be elaborated in what ways we can really render services to human beings. And another point you have raised, what you choose to do becomes your destiny. No, so not to destiny is there. Your reaction is your it's a choice how you react to the situation. Well, it's your choice how you react to what? To the situation. Okay. Then controlling thoughts with the help of meditation, this is very important. And the simplest form of meditation you have already talked about. And in Mumbai, there is a laughing club, instead of smiling, laughing club is probably more important because that requires complete linear expansion of the organs. Otherwise, you have raised very vital points. Ultimately, you have landed up with meditation. But I will still insist, last time also, I raised this point that we can change our destiny, we can influence our destiny, provided we render some services to the people who are at distress. When I do something for others, चाहे वो हम टीचिंग के काम पे किसी का मदद करें, चाहे किसी को इकोनॉमिकली हेल्प करें, चाहे किसी गरीब को एडवाइस दे या कुछ भी करे, उसका हैप्पीनेस को बढ़ाने का एफर्ट करे. All those endeavors, which ultimately lead to increase in the happiness of others, mankind, that is very important. And वो पार्ट तो है ही है जिसको हम लोग कहते हैं शुद्धा भक्ति, अनकंडीशनल सरेंडर टू ऑलमाइटी लॉर्ड. ये अनकंडीशनल सरेंडर जो है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक. इसमें इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय हमें लगता है. तभी जाके महाप्रभु चैतन्य के बारे में आपने सुना होगा, जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ से समाधिस्थ हो गए थे. उन्होंने जो प्रीचिंग किया कि अगर आपको कोई चीज करना है तो अल्टीमेटली शुद्धा भक्ति, दैट इज जिसको आपने कहा अनकंडीशनल सरेंडर टू ऑलमाइटी गॉड. थैंक यू अनिल, इट्स ए वंडरफुल सेशन and we have been benefited, the students have been benefited, the faculties have been benefited, and I think you should circulate your printout to the students as well as faculty members so that we can learn, and from the process of learning only we can definitely remove the clouds of doubts and anxiety. Thank you, Professor. So I'd like to clear a few things on this. Yeah. First, all these things, or the PDF printouts, PDF of the files, my slides are available on the website. Okay. Students go there and they can download. All my lecture notes are also there. That's a thing about the materialistic thing that you said. Some materialistic things gives you happiness just for a moment. Those are momentary happiness. आपको एक मोबाइल फोन चाहिए, हमको बच्चों को चाहिए, या बस थोड़ी देर के लिए है, कुछ नेक्स्ट डे में भी वो कुछ they will want something else. The inner peace that you get out of this is more important and more long lasting. कि कोई भी चीज के जैसे unconditional surrender की आप बात कर रहे हैं, sir, it is difficult. It is very easy provided you have the grace of God and you try to do it.
try to practice it. जैसे मैं अपने बता सर, मेरे से कोई भी काम होते हैं, मैं हर चीज पे तो कन्हैया तुम संभालो. It is not very difficult. That's the attitude you have to inculcate a habit. जैसे मैंने कहा कि इसे नत की मैंने बताया switch on switch off हुआ, no. It is not about switch on switch off situation. It is something which you have to think and inculcate for yourself to be able to do these things. दूसरी जो आप पब्लिक सर्विस की बात कर या सर्विस टू द मैनकाइंड की कर रहे हैं सर, उसमें आई वुड लाइक टू टेल सर्विस टू द मैनकाइंड इज इंपॉर्टेंट. सर्विस टू द मैन एक आपका कर्म बनाता है, आपके कार्मिक सिचुएशन उस पे जाके दैट हेल्प्स यू इन वे. बट पहले आप ठीक रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू सर्व द मैनकाइंड. व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, बिकॉज दिस ऑफ डिस्कशंस लेक्चर जैसे एंडलेस चीजें हैं कि इसमें इफ यू आर योरसेल्फ ओके, आपको खुद की चीजें नहीं ठीक है, ऐसे में आप दूसरों को कैसे हेल्प कर पाओगे? आप घर में मान लीजिए कोई चीज नहीं है, आप दूसरों को हेल्प कैसे कर पाओगे? आपके पास आपके सर में दर्द अगर हो रहा है, कोई भी आपके दरवाजे पे आपके कुछ भी मांगने चला जाए, आप कहोगे भाई मेरा सर दर्द इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो इसका मैं आपको एक बताऊं, एक वन ऑफ माय लेक्चर्स, वन ऑफ द टीचर इज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम. वहां पर जब मैंने इस चीज को देखा, एक ने कहा कि सर अभी मेरे घर के अभी उससे पहले कुछ हुआ था इंसिडेंट कि बोरवेल में बच्चा गिर गया. उन्होंने कहा कि सर मैं 3 दिन हम लोग टीवी के सामने बैठे रहे, दे रहे, और हम लोग खाना नहीं बना, खाना पीना बंद था, और 3 दिन हम लोग बहुत परेशान रहे. तो आज कि कौन परेशान हो रहा था एंड हाउ वर यू कंट्रीब्यूटिंग दैट टू दैट सिचुएशन. चीज ये है कि आप उस सिचुएशन को नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे थे. व्हाट यू आर डूइंग इज आपको परेशान कर रहे थे. फर्स्ट थिंग यू हैव टू योरसेल्फ ठीक से रखना है, देन यू कैन हेल्प अदर्स, एंड दैट इज वन थिंग इज इम्पोर्टेंट. हेल्प करना तो वो चीज वो तो आपके कर्म में उस चीज के साथ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बैक. सुरभि मैम ने भी कहा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, एक्शन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बैक उसका जो भी आपका फल है आपको मिलना जरूरी है. जितने देर से मिलेगा उतने इंटरेस्ट के साथ मिलेगा. आपने काम किया है और उसका अच्छा ही आपको रिटर्न मिलना है. जो अगर आपने गड़बड़ कुछ किया है तो उसका गड़बड़ ही आपको रिटर्न मिलना है, बट मिलना जरूर है. And so there are less discuss things about these things. I am focusing on one thing, to keep self happy and fit at the present moment. Everybody tries to do that. Yes. Everybody makes every possible effort to keep oneself happy. My simple submission is कि हम बच्चों को अगर ये बचपन में ही, चाइल्डहुड में ये ट्रेनिंग दे कि आपको खाना मिल रहा है because your parents are in a position to earn money and do the needful for you, okay, but उसके बारे में भी सोचो, उन साथियों के बारे में भी सोचो जिसके पास कुछ नहीं है. It is just a matter of chance. तो अगर that is sensitizing them. That is a different संस्कार में आ जाएगा. Sir, you get good संस्कार to your children. ये है कि बचपन से अगर हम ये इनकलकेट करवाए हैबिट्स को, राइट? बिल्कुल. That is what is called संस्कार. That is needed. Yeah. हमारे पास 10 रुपया है, हम तो 10 रुपया को खर्चा भी कर दे रहे हैं. 20 रुपया हुआ उसको भी खर्चा कर दे रहे हैं. Everything is being spent out, but we are not telling our children that, Sunny, ultimately you need to spend something on the poor who does not have anything at all. उससे जो happiness मिलेगा उसको realization. So that is not the only way of happiness. Happiness की definition keeps on changing from time to time. आपको हो सकता है अभी इसका हैप्पी कर रहे हो, 1 घंटे बाद वो चीज नहीं है, वही चीज से तकलीफ होने लगी है. बहुत ही इलास्टिक है. आई एम टॉकिंग अबाउट ना सर, एक और चले जाइए आप, स्वामी विवेकानंद मिशन में जाइए, वहां पे जो प्रीचिंग है, ओनली वन प्रीचिंग इज देयर, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड. नहीं सर, जो सर्विस टू गॉड सर, इसमें भी हैव टू बी ग्रेटफुल दैट यू आर एबल टू सर्व. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास
सर्व करने का मन कर है, बट दे डोंट हैव पीपल किसको सर्व करें जाके, किसको करने लगे. बट it is also divine grace that you have got an opportunity to help someone, and no one should feel out कि हमने अगर किसी को कुछ किसी हेल्प कर दिया, that is nothing that I'm doing something great for that. That I should be grateful that I'm कि मुझे ये करने का मौका मिला. We should be grateful to the Almighty कि हाँ मौका तो मिला. वरना आप देख लीजिए बहुत लोग इस तरीके के हैं जो नहीं करना चाहते बट नहीं कर सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं वो भी बहुत कर ले जाते हैं. This gives you happiness definitely. Again thing is you should ये नहीं करना चाहिए कि मैं कर दिया. You should not have the arrogance that I've done this thing for someone else. No, what you need to is you should feel thankful that okay, I was able to do something for someone, and that you should be thankful to the Almighty or the whichever divine force you believe, and that ultimately goes to unconditional surrender. भगवान तुम्हारी कृपा है मैं ये कर पाया. That is the thing you have. Yes, very true, very true. Thank you, Anil. We will have some discussion later on when the definitely sir lockdown is over. Definitely आपके साथ बैठ के बहुत डिस्कस I will come to your office and discuss. No, I come to you, sir. Thank you. Bilkul, I'll come to you, sir. Definitely. Thank you. Thank you very much, sir. Thank Any you. other questions from anyone? Sir, one question from me. Yes. There's not a question, and then just a small वो था सर. लास्ट में जब आपने साइलेंस दिखाया तो आपने एक फोटोग्राफ दिखाया सर. वो सब सिंबॉलिक है वो. सिंबॉलिक क्योंकि उसको पहुंच के साइलेंस होने में सर देश में उतनी हैप्पीनेस आई कि नहीं. मैं that was just make it just to end in a funny note. Yeah, अच्छा तब ठीक है. कोई भी चीज अच्छा होना चाहिए. But it brings smile to all audience who see that. तो ठीक है. I'm unmuting all the participants. बच्चों आप सबको अनम्यूट कर रहे हैं, एंड मुझे पता है आप लोग बहुत डिसिप्लिन में हैं. आप लोग अभी सर हैं ये अब तो कोई और क्लास है नहीं ना. बाकी कुछ बल्कि मुझे एक चीज ये भी लगी कि वंदना दी ने सुनीता कुमार दी को जो इसको कुछ पूछना है वो कोई अपना हाथ उठा ले और पूछ ले. सर मिश्रा सर आई विल टेक योर हेल्प बिकॉज मुझे अनम्यूट ज्यादा मुझे आता नहीं. अगर कोई हाथ, क्योंकि 7-8 लोगों ने हैंड्स रेज किया था बीच में. बच्चों आप कि जैसे तुमको हम लोगों ने हमने प्रोटेक्ट कर दिया, तुम लोग आगे नहीं आना चाहिए. ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं. अरे हम चाह रहे हैं, हम प्रोटेक्ट नहीं आना चाहते हैं. हम भी नहीं आना चाहते हैं. ये जो इशू कर देती है ना चेतन सर का, तो हमने बताया था कि सर हमारे यहाँ तो मतलब बताया था डैडी का. Sir, I have a question for you. So कितने बजे बैठता है डॉक्टर? So I have a question for you, a little one. बेटा who is that? नाम बताओ. Ma'am is being Ayush Agrawal. Ayush, just a moment. Anil Mishra sir, can you hear us? Because can't hear you. Ayush, just a second. Okay? Yes, ma'am. My question is that sometimes happiness stems to be luring than the things which should not be. For example, it just gives the happiness to the students to play outside and do not study. But we know what is being good for us to study. So how to differentiate at that point of time? No, there are two things. One is your duty. What are your duties as a student? You have to study. Okay? And play outside is also important. So you have to make a balance between the two. अगर आप क्लास के टाइम बाहर के टाइम क्लास में बैठेंगे तो आपको कहीं नहीं. ये है कि हाँ दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप ये सोचे कि सिर्फ खेलते रहेंगे पढ़ेंगे नहीं, और या सिर्फ पढ़ते रहे खेलेंगे नहीं, दोनों की सिचुएशन में आप कहीं पर ठीक नहीं है कुछ. आप उसको सोने दीजिए पहले, है ना. तो आप इसमें क्या है, हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू. Yes, sir. Yes, sir. Got that. Good afternoon. Any other question?
myself, Dr. Ankita Pandey, I want to ask a question. हाँ पूछिए। Thank you so much, sir. Ankita is our brilliant student, one of the most talented one. Ankita जी सब यहीं के गए हुए हैं सर, बहुत झंडे गाड़ रहे हैं सब जगह जाके। So, ma'am, thank you so much, and I'm really grateful to all my teachers. And today मैं ये बोल सकती हूँ कि you have been a healer to many of us. आपने heal किया हम लोगों को। नहीं, thank you very much, this is my pleasure. मैंने heal पीछे कर नहीं है, बैठे उन्होंने heal किया है। नहीं सर, डेफिनेटली हमारे सब टीचर्स यहाँ पे, हमारी प्रिंसिपल मैम है, इतना अच्छा सेशन था कि मतलब मन ही नहीं हटा एक मिनट के लिए भी, और इट इज एक्चुअली अ हीलिंग सेशन। तो मेरा सर एक क्वेश्चन है, यू टॉक्ड अबाउट हाउ द माइंड इफेक्ट्स योर हैप्पीनेस। आपने बताया कि वी वरी, then we get anxious, and then it leads to stress, and then it actually affects our body. ये मेरे साथ बहुत होता है। I have a nature कि मैं बहुत छोटी बात पे बहुत जल्दी वरी करने लगती हूँ। कोई भी दूर दराज क्षेत्र में कुछ हो रहा होगा, then I start worrying. So what I do is, आपने जो बताया कि मैं उस टाइम ये सोचती हूँ कंट्रोल फैक्टर कौन से हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, और द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड माय कंट्रोल आई लीव टू ऑल माय। बट सर ये चीज बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, क्या इसको मैं अपनी हैबिट कैसे बनाऊं कि मैं बिल्कुल वरी करूं ही नहीं? आई वांट टू नो दिस। बिल्कुल वरी नहीं, खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल वरी खत्म हो सकते तो बेकार है जिंदगी। वरी रहेगी। देखिए, कंसर्न होना किसी एक सिचुएशन, यू हैव, ये भी ऐसी चीज है, यू हैव टू इनकलकेट दैट। मैंने आपको बताया और तुरंत आपके साथ ये हो या नहीं होगा, ये मान के चलिए। इसके हैबिट आपको खुद अपने आप के लिए बनाना है कि ऐसे कोई, जो मैंने बताया कि यार कोई सिचुएशन है, यू ट्राई टू एनालाइज इट कि उस सिचुएशन में व्हाट इज गोइंग ऑन, कि हाउ कैन यू, अगर कोई सिचुएशन में कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली डू इट। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप उसको छोड़ना ही आपके लिए ठीक। ट्राई टू लीव, बिकॉज एक और कहावत है, लीविंग इज आर्ट ऑफ लिविंग। लीविंग दोस्त थिंग्स, क्योंकि अननेसेसरी, अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बोरवेल में कोई प्रॉब्लम थी तो उनको 3 घंटे जो जहां पे आता वहां से 500 किलोमीटर दूर वो व्यक्ति बैठ के परेशान हो रहा था अपने घर पे सिर्फ टीवी को देख के, और परेशान हो रहा था, ये खुद हो रहा था, कोई और ना कंट्रीब्यूट कर रहा था। दैट इज व्हाट आई एम यू आल्सो, कि आप अपना ध्यान दीजिए कि कैन यू कंट्रीब्यूट टू दैट सिचुएशन इन एनी। If you are able to contribute, definitely do. जैसे अभी का कोविड के सिचुएशन का देखिए, इसमें आप जैसे you are able to contribute to this situation, आपका इस सिचुएशन कंट्रीब्यूशन ये है कि stay at home, ठीक। बाकी अदरवाइज आपको ना ड्रग ढूंढ सकते हैं ना कुछ करते हैं, आप अपनी जो ड्यूटीज है यू कैन परफॉर्म देम। तो ऐसी चीजें कि जो सिचुएशन, ट्राई टू डील विद देम इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे which is more logical, जो तरीके से आप कर सकते हैं एक्सेप्ट करिए, और जो अगर कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ट्राई टू फॉरगेट। मैं कह रहा हूँ फॉरगेट तो नहीं हो सकता। कोई भी चीज आपको बॉदर कर रही, सोचिए क्यों बॉदर रही है, अगर बॉदर कर रही उसमें आप कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू डू एनीथिंग, जस्ट गो अहेड एंड डू इट, है ना। Thank you so much, sir. Thank you. It was a pleasure to be in this webinar, and thank you for healing all of us. Thanks a lot to all the teachers. It was my pleasure. Any other questions from anyone? One second, I like to interrupt that there is Nisha ma'am is also here, and tomorrow she is organizing the series in her college, in Mahila Degree College. Nisha Gupta ma'am, you are welcome. आपसे सारे questions कल ही पूछे जाएंगे, सुने जाएंगे। आप चूंकि यहाँ कल ही पूछेंगे, बट वो मुझे अभी दिख गई तो मैंने कहा उनका मैं विधिवत एक स्वागत तो कर ही दूं। बिल्कुल अच्छी है, इट्स माय प्लेजर मैम। मैम बिलीव मी, जितनी बार मैं ये लेक्चर देता हूँ ये मेरा खुद का रिफ्रेशर कोर्स होता है। और मैम कुछ हमारे यहाँ से नवयुग से भी मनमीत मैडम जुड़े हुए हैं, मैंने देखा उनको। मैडम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है। एक विनोद सिंह सर, प्रोफेसर विनोद सिंह हैं फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। सर आपका भी स्वागत शुरू में नहीं कर पाए, बट आपको देखा, पार्टिसिपेट किया आपने, वी आर वेरी थैंकफुल।
कौशिकी सिंह मैडम को मैं देख पा रही हूँ फ्रॉम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। वो कौशिकी मैम है। Good to see you all, madam. It's really a pleasure that you have joined us, ma'am. Thank you so much. Happiness personified. True. Well, बिल्कुल अभी जितने लोग बाहर से आए हैं सुरभि मैम, विद योर परमिशन, जितने लोग बाहर के इंस्टीट्यूट से हैं किसी डिजिग्नेशन, they are all requested to contact me because we are going to carry on these series in all the institute, so please do contact me. And अनिल मिश्रा सर ने जैसे कहा, उनका फोन नंबर अभी बता देंगे। उन्होंने जो वेबसाइट में अपना जो मेंशन किया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लीजिए। उनका फोन नंबर भी अवेलेबल है, वो भी अभी मैं इसमें से पढ़ के भी बता दूंगी, आप लोग वेबसाइट में भी देख सकते हैं। और बाकी अनिल मिश्रा सर से मैं जिद मार के उनके सारे लेक्चर काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल में, ये वाले जो काउंसलिंग वाले, वो हमारे काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल में भी आपको हैं। अदरवाइज उनका बहुत वृहत है, बहुत ज्यादा संख्या में उनके स्पेशलाइज्ड टॉपिक जो हैं वो उनकी अपनी साइट में भी हैं, तो दोनों जगह आप लोग देख सकते हैं। सॉरी सुरभि मैम। नहीं, नो नॉट सुरभि मैम। और जी मैम जी, बस एक लाइन सर को कहना चाहूंगी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन सेशन सर। I guess happiness in a smile, either by the attitude of gratitude or through the service of mankind, either way sir, it helps to boost our immune system, which is actually the medicine of corona inside our house. Thank you so much sir. That will be part of the lecture. That will be part of my evaluation tomorrow. Tomorrow it is overcoming the stress and disconnection. That's very true tomorrow. So actually we need this type of. You need to join tomorrow also in that session. Yeah, definitely ma'am. Thank you. साथ ही विनीत कुमार सर हैं फ्रॉम BBAU। मैं सर आपका भी वेलकम करती हूँ। और मैं अनामिका मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, मैम कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हो जो विच इज वर्थ आस्किंग अनिल मिश्रा सर, तो काइंडली आप उसको सॉर्ट करें। बच्चों की क्वेरी रही होंगी। और one question to me. Excuse me. Yes madam. जी मैम। सबसे पहले तो मैं वेबिनार ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। माई सेल्फ डॉक्टर रीना श्रीवास्तव फ्रॉम नेशनल PG कॉलेज सर। और जो अभी कौशिकी ने कहा, कौशिकी हमारी बहुत पुरानी छोटी बहन रह चुकी है, और उसने जो कहा वो एकदम सही कहा कि हम सब अपने घरों में बंद हैं और बहुत चिंताशील है। ऐसे सिचुएशंस में गुरु नानक कॉलेज के द्वारा जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत अच्छा लगा सर। सर इस समय की जो सिचुएशंस है कि जिस तरीके के ग्रोन अप चाइल्ड है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं सर, तो उस समय पर अपनी एंजाइटी और एक तरीके से अपनी वरी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ी थोड़ी तो एंजाइटी होनी चाहिए, बस सर इन लोगों के फ्यूचर को देख करके कभी कभी तो लगता है। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ एंजाइटी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्या कंट्रोल योर फ्यूचर। डू यू नो व्हाट विल हैपन आवर फ्रॉम नाउ? नो ना। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में यू शुड नॉट बी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, थिंकिंग एंड वरीइंग। आपके बारे में सोचिए विद द पॉजिटिविटी एंड प्लान कि हाँ, अगर मान लीजिए आपको आगे कोई प्रॉब्लम रही है कि ऐसे सकता है, तो उसके लिए सोचकर ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं। नथिंग एल्स, बिकॉज यू कंट्रोल योर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने लगा, जैसे मैंने गाना भी बताया, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाना तू, जो भी है ये पल है, अभी के मोमेंट में आपको रहना है। जैसे बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आप क्या सोचते हैं, क्या होगा, इसके बारे में आप सोच के प्लान करिए, बट वो कहाँ तक सक्सेस होगा ये फ्यूचर ही रहेगा। तो ये एंग्शियसनेस हो, मतलब आगे के बारे में सोचना जरूरी है। ये सोचना कि भाई आगे होगा देखा जाएगा वाली चीज होती है, बट ये वही मैंने कहा ना, जो होगा जाएगा के बाद एक्सेप्ट हुआ, बट दैट डज नॉट मीन इन प्लानिंग करी, बट उसको परेशान होकर प्लानिंग करेंगे तो आप कहीं नहीं होगा। अल्टीमेटली परेशान आप खुद ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, फ्यूचर के बारे में कंसर्न होना इज अ डिफरेंट, परेशान इज अ डिफरेंट। कंसर्न होइए, परेशान होइए। उससे सिर्फ एक चीज है, एक्सेप्टेंस की, वो है हम प्लान करके देखें, बाकी आगे होगा देखा जाएगा।
ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फरवरी में मैम कोई सोच सकता था कि हम लोग घर के वेबिनार्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे? और कोई क्वेश्चन? अनामिका मैम, any questions which you have summarized? कोई पूछ रहा था, कोई मैम? आशुमोहन is asking some question. हाथ उठाया आशुमोहन पांडे। बस आशुमोहन नहीं, चलिए anyone else wants question? ऑन स्क्रीन बहुत देर से पूछना चाह रही Thank you, sir. नहीं करेंगे, ऐसा अनामिका, नहीं है। Yes, thank you, sir. It was such a motivational lecture. Sir, एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन है, और यश पांडे जी है, उनका क्वेश्चन है हाउ टू फोकस ऑन एनी सब्जेक्ट। कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आती है कि हाउ टू फोकस ऑन एनी सब्जेक्ट, कि हमको पढ़ते टाइम में कैसे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि उनका ध्यान भटकता है। तो आप इस पे बच्चों को कुछ सजेस्ट करते हैं? ठीक है भैया। नहीं, इसमें फोकस करने का ये कि जैसे मान ली आजकल बच्चों को 5 तरह का पढ़ना है, दे शुड हैव प्लान कि हमको कितनी देर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मेरा बिना सर के ये फोन है, मेरी बिना सर से कौन सा? इसमें ये ध्यान देना है कि मान ली अगर थोड़ा इधर पढ़ा, थोड़ा वो पढ़ा, थोड़ा वो पढ़ा, नहीं यार उसके बाद सोचा कि यार वो सब्जेक्ट छूटा है, ये तरीका नहीं है। कोई प्लान बना ले, ये कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेक अ प्लान, मेक अ टाइम टेबल, कि जैसे स्कूल में भी टाइम टेबल होता है, क्लास का अलग अलग है, उतनी के लिए थोड़ा एनालाइज है, जिस सब्जेक्ट की जितनी इंपॉर्टेंस है, मेक देयर ओन टाइम टेबल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से दे कैन गो अहेड, मेक द एंड स्टडी। दैट इज द थिंग दैट दे कैन डू राइट नाउ। थैंक यू सो मच सर, बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिली होगी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज? हेलो यस मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जिज्ञासा जी बोलिए। तो मुझे बस इसका आंसर जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना। बस इतना को कि जब हमारे नेचुरल कोई प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, तो हम उसे कोप अप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ लोग आपके सामने जब बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आप कुछ हद तक उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो एंगर या चिड़चिड़ेपन के रूप में वो बाद में किसी और पे निकलता है, तो उस समय हमें क्या करना है? गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, इसमें अगर कोई सिचुएशन है जिसमें एंगर के तरीका कंट्रोल आपको खुद को करना, अगर आप उस सिचुएशन के बारे में कुछ सकते हैं तो डेफिनेटली इसको करिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो चलेंगी। वहां पर जैसे वर्क पे है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, या कोई और भी सिचुएशन है, उसमें आपको खुद को कंट्रोल करना है। इसमें आप दूसरे के एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये नहीं, आप किसी को ये नहीं रोक सकते कि कोई क्या कहे, आप अपने आप को उसके लिए मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जी जी, लेकिन वो भी हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, उसके बाद क्या? नहीं, उस कहाँ की लिमिट तक, मतलब मैं देखिए, या तो उसके लिए परेशान होके अपने तबाह कर लीजिए, यही ऑप्शन है। उसको अवॉइड करने के लिए तरीका बता रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है, कुछ भी छोड़ना पड़ता है। कुछ चीज ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके यू हैव टू लीव इट। उसको कहीं हाँ ये है, तो उसको मैं अगर कोई एक्शन करते हैं तो डेफिनेटली इसको करिए, एक्शन नहीं कर सकते हैं, हैव टू लीव इट। मतलब खुद को उस सिचुएशन से कैसे ठीक रखते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। मेरी माँ कहती थी कि एक स्ट्रॉन्ग ना 100 कमजोर हाँ से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ना भी करना सीखना, ना करना नहीं आता है, बहुत जरूरी है ना करना। जी सुरभि मैम। हाँ जी मैम, मेरे ख्याल से we have taken enough time of Anil Mishra sir, so now I hope all the queries have been solved, and if there are some more, so as Madhurima ma'am has suggested that tomorrow also one of the session is going to take place in Mahila College, so people might join, and there they might ask certain questions,
And today I want to thank all the participants, all the principals, managers, delegates, Madhurima ma'am, especially Madhurima ma'am and Anil Mishra sir. And thank you, Sen Gupta sir. Thanks to our VC sir, Alok Kumar Rai sir, who had always been on motivation. I would like to thank my manager sir also, who had been in continuous support in organizing any program we suggest to him. So it is only because of him that we are able to move forward. And thanks to everyone whom I have mentioned in this particular program and whose name I have forgot to mention. But believe me, without your participation, let it be teaching staff, let it be other staff, and let it be our participants, without anyone's, I mean, everybody has got his or own contribution, and without their support, without if any of the area gets weak, then it is very difficult to organize a thing. I thank Majumdar ma'am, Harshita ma'am, and Zia madam, and Preeti Sindhi madam, who had been of great help to me for organizing the program, the whole seminar committee and counseling and placement committee of our college. And with the permission of Madhurima ma'am, madam, if you kindly allow, then we might take leave for today. And all thanks again to Anil Mishra sir and Madhurima ma'am. Thank you so much, ma'am. Regards. Thank you, ma'am. It was a pleasure to be Thank you, sir. this. Thank you. We are more blessed, sir. Thank you.